So praise the Lord saints. प्रभु की धन्यवाद हो। God has given us one more opportunity to have fellowship with the saints. प्रभु ने हमें एक और मौका दिया ताकि हम भाइयों के साथ संगति कर सके। Last time when we were having the meeting on First Corinthians, I stopped in chapter 6 verse 11. कल जैसा हमारा लास्ट में हमारा बाइबल स्टडी हुआ, मैं पहले कोरिन्थियों का 6:11 में रोका। And then because I felt that was the first part of the chapter 6, and then chapter 12 it starts with the second aspect of what Paul is trying to share. मैं 6:11 पर इसलिए रुका क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो छठा चैप्टर का जो पहला हिस्सा है वो वहां पर अंत होता है, फिर 12वां वचन से दूसरा हिस्सा एक दूसरा मुद्दा शुरू होता है। So when I was going through chapter 5, 6 and 7, I was wondering why Paul is repeating the matter of adultery and sexual immorality and fornication again, which was already said and done in chapter 5, but he had to take again in chapter 6. तो जिस तरह मैं पढ़ते जा रहा था तो मुझे एक शंका आ गई कि क्यों पौलुस बार बार व्यभिचार का जो पाप है उसके विषय में ही चर्चा कर रहा है। वो 5वें चैप्टर अध्याय में उसने एकदम साफ रूप से उसने बता दिया था कि वो पाप है, वो नहीं करना चाहिए, फिर भी उसी विषय में और अधिक उसे बोलने के लिए उसे क्यों महसूस हुआ। So by reading, so I had to go through with some brothers' commentary to understand what maybe if I go through another angle, maybe the brothers might help. So that is why I went through some commentaries. इसलिए वो समझने के लिए मैंने अलग अलग भाइयों का कमेंट्री, उनके विषय में उनका उस पर क्या है विचार, ये जानने के लिए मैंने अपना मन लगाया। So because I know that there are certain brothers in the history that we have, because they know the church history aspect, and sometimes they know the deep meaning of why some things are mentioned in the Bible. So that is why I thought of going through the commentary. मैं कमेंट्री इसलिए जानने के लिए मेरा मन हुआ क्योंकि कुछ भाइयों को कलीसिया की गहरी बातें, उसका इतिहास क्या था, उस समय में क्या क्या बातें घटते, उसके आधार पर पौलुस ने ऐसा क्यों लिखा होगा, ऐसा शायद लिखा होगा, ऐसे मेरे मन में ख्याल आया। तो वो क्या है वो बात, वो समझने के लिए मैंने कमेंट्रीज पढ़ने शुरू किया। Based on what I've read and understood, I'm just sharing my joy of that commentary, and I would like to share the joy of that. और उस आधार पर जो मैंने पढ़ा, मैं अपना आनंद आप भाइयों के साथ बांटना चाहता हूँ। So even though the matter of fornication is common in chapter 5 and 6, भले ये व्यभिचार का जो पाप है वो तो 5वें और 6ठे में बार दोहराया तो है, and then it is mentioned again in a different way through marriage in chapter 7. लेकिन उसका दूसरा पहलू भी एक अलग रूप से वहां पर व्यभिचार के विषय में ही 7वें अध्याय में भी वो लिखता है। Even though the topic of fornication is the same, but it is talking to different people. भले कि व्यभिचार ही था मुद्दा, लेकिन वहां पर जिन लोगों के लिए वो मैसेज था, वो संदेश था, वे अलग अलग प्रकार के झुंड के लोग के लिए था। इसीलिए बार वो अलग अलग जो लोगों के अनुसार उसने अपना व्यभिचार के विषय में उसने अपर वर्णन किया। Why he starts in chapter 5 there we can see is that because first chapter 5 he is talking to one specific individual. 5वें अध्याय में वो एक खास एक व्यक्ति को लेकर वो वहां पर व्यभिचार का सब्जेक्ट लेता है। And there he heard this said about this specific brother which he has done. Paul heard various reports through many other brothers that the church is allowing a brother who has done fornication, and the church is allowing to that brother is still sitting in the church. 5वें अध्याय का जो व्यक्ति था, जो व्यभिचार का जिस तरह का पाप में वो गिरा था, उसके विषय में पौलुस को अलग अलग जगहों से
खबर आया था और कलीसिया के भाइयों के द्वारा उसको अलग अलग लोगों से उसको इस विषय इस भाई के गवाही उसको सुनने मिला, तभी मालूम पड़ा कि इस प्रकार के पाप में वो गिरा हुआ है। But when we read from chapter 5 verse 9 लेकिन 5वां अध्याय का 9 से जब हम लोग पढ़ने लगते हैं, till chapter 6 verse 20, जब तक 6 का 20वां वचन खत्म ना हो तब तक, that is a different aspect, because in chapter 5 verse 9 Paul had already written a previous letter before First Corinthians. वो एक दूसरा हिस्सा है व्यभिचार के विषय में जो उसने कहा, क्योंकि सो दैट which he wrote before First Corinthians. जो पहले कोरिन्थियों के पहले जो लिखा हुआ लेखा के आधार पर था। What happened was, when Paul wrote a letter before First Corinthians, there was many miscommunication, and they took the message in a different way. तो पहले कोरिन्थियों के पहले लिखा हुआ जितने भी जो लेटर थे, वो खत को उनका सही अर्थ के ने उन्होंने नहीं मैसेज को ग्रहण किया। इसके वजह से वहां पर गड़बड़ी मची थी और उस विषय में उन लोग को स्पष्टता चाहिए था। तो ये बात थी जो उसने व्यभिचार के बारे में ही लिखा था पहले वाले खतों में। तो वो बातें जब उनको पता चला पौलुस को कि उनको सही तरह से ग्रहण नहीं हुआ, इसलिए सही तरह से ग्रहण होने के लिए स्पष्ट रूप से ये अध्याय में वो लिखने लगता है। So, and then Paul is trying to make the people understand that there is a misunderstanding to what I told, and you have understood it the wrong way. So now I am trying to correct and tell you that this is not the meaning. The meaning is something else. इसलिए जब वो वर्णन करने को शुरू करता है तो वो लिखता है कि मैं जब इसके विषय में जब लिखा था कि उसका अर्थ ऐसा नहीं था जिस तरह से तुमने समझ लो कि ले बैठे हो। इसका अर्थ क्या है वो समझने के लिए, सही अर्थ क्या है स्पष्ट समझने के लिए वो ये अध्याय लिखता है। So what happened is, in Corinthian church last time previously, when Paul had visited and when he had written many letters, he had told that in the church that we are living in the grace, not in the law. जब अपने खतों में वो जब भी वो उनको लेटर लिखता था, वो खत में ये हमेशा बताता था कि हम लोग अभी कोई व्यवस्था के अधीन में नहीं है, कि कोई जंजीरों में बंधे हुए कोई व्यवस्था के अधीन में नहीं है, कोई कानून, लेकिन हम अनुग्रह में आजाद किए गए। So what happened was, and based on that aspect, in the previous letter he has written about eating food, about meat and food. गए पत्रों में वो भोजन के विषय में लिखा भी था कि क्या खाना है और कैसे खाना है, और मांस के विषय में भी कहा गया कि वो मांस कैसे खाना है। इस तरह के उपदेश अनेक उसने लिखे थे अपने पुराने खतों में। What happened is, when Paul he had said that now we are not under the law but under the grace, because of which there was another group that was formed in Corinthian church. They were known as the liberals. Brother, can you repeat? Because Paul had mentioned that we are not under the law but under the grace, because of which there was a new group formed which was known as the liberals. क्योंकि पौलुस ने कहा कि हम लोग अभी व्यवस्था या कानून के जंजीरों में आके अधीन में नहीं, अभी हम लोग अभी आजाद हो चुके हैं, हम लोग अनुग्रह में हैं। क्योंकि ऐसा इस तरह से उसने जब पत्रों में लिखा था शब्दों से, तो लोगों ने उसका गलत अर्थ निकाल दिया। इस कारण वहां पर कुछ लोग झुंड एक अलग ग्रुप तैयार हुआ जहां पर वे लोग अपने आप को लिबरल समझने लगे। लिबरल मतलब हर चीज करने की छूट। राइट, इट्स लाइक मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं, इट्स ओपन, क्योंकि हम बिकॉज वी आर इन ग्रेस सो वी कैन डू एनीथिंग, बिकॉज एवरीथिंग कम्स अंडर ग्रेस नॉट अंडर लॉ। क्योंकि हम लोग अनुग्रह में, इसके हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई कानून में नहीं कि हमें ऐसे ही करना है या ऐसा नहीं करना है, हम कुछ भी हमारे मन के अनुसार करें। इस प्रकार के सोच समझ रखने वाले लोग झुंड वहां पर खड़े हो गए। To make you understand, we can read one scripture that is in, this was also formed in the book of Galatians also. यही गलतियों की किताब में भी हम देखते हैं, वहां पर वहां के लोगों ने वर्णन किया, वहां के लोगों ने किया गलत। Yeah, that we can read Galatians chapter 5. गलतियों का 5वां अध्याय।
There also Paul, because he had mentioned that we are not under the law, under grace. There were some liberals in chapter 5, verse 13. गलतियों का 5 का 13 पढ़े. The 13 it says that for you, brethren, have been called to liberty. Only do not use the liberty as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. Amen. इसलिए हे भाइयों कि तुम अपने आजादी को इस्तेमाल ना करो अपने शरीर के अभिलाषा को पूरा करने के लिए, लेकिन वरन आप प्रेम में एक दूसरे की सेवा करो. This is the same type of group, that is the liberates, that was formed in Corinthians as well. यही सोच समझ रखने वाले लोग ही थे जो कोरिन्थियों कलीसिया में भी वे खड़े हो गए थे. Yeah, and what was the problem of them? समस्या क्या था? That they believed that since we are under grace, so we can use our body according to our own desire and fulfill the lust. क्योंकि अभी हम लोग कानून में नहीं है, हम लोग अनुग्रह में आ चुके हैं, इसलिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं ताकि हम, और वे लोग ऐसा सोच रखते अपने सारे शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने में अपने आप को बेच दिए. Yeah, these are the main people who formed divisions in chapter 1 and 2 regarding some. They were telling that I am of Paul and I am of Apollos. These were the main initiators to form this type of divisions. और इस प्रकार का सोच रखने वाले लोग ही थे जो पहले प्रथम लोग जो थे वे लोग खड़े हो गए थे, और बाकी के लोगों को भी इसी सोच में लाकर वे लोग एक झुंड बन गए थे. And they started division by telling we are of Paul, we are of Apollos, we are of Peter. These were the main initiators to form division in the church. और यही लोग थे जो अपने आप का सोच इतना ऊपर ऊंचा उठा दिए कि वो आपस में विभाजन करने लगे और कहने लगे कुछ लोग कि मैं अपोलोस का हूँ, मैं पौलुस का हूँ, मैं सिफास का हूँ और मैं मसीह का हूँ, और वो लोग कलीसिया को वो डिवाइड करने लगे. So whenever the elders would try to make them understand that no, we are not supposed to cause divisions or cause hindrance in the church, that time they would all shout one slogan. इसलिए जब जो बुजुर्ग लोग जब आकर इकट्ठा हो गए और वे लोग को बात समझ में आई कि हम ऐसा नहीं करना है, तो वो लोग इकट्ठा होकर विरोध करने लगे. Yeah, they would all shout slogan telling all things are lawful, all things are lawful. और तब वे लोग चिल्लाकर ऐलान करने लगे कि सब कुछ करना व्यवस्था के अनुसार करना है. नहीं, all things are lawful. We can do whatever we want in the body because we are under the grace, so we can do all things what we desire. क्योंकि हम लोग अनुग्रह में, इसलिए हम लोग सब कुछ कर सकते हैं जो हम जिस चीज की इच्छा हो. This was the common slogan which the liberals used to declare whenever they wanted to cause strife in the church. इसलिए ये जो लिबरल जो लोग थे जो झुंड वहां पर खड़े हो गए थे, वे लोग स्वतंत्रता के लिए खड़े रह गए और वे लोग कहने लगे कि हम लोग जो भी है, जो शरीर में इच्छा होता है वो अभी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अभी व्यवस्था में नहीं है, हम लोग आजाद हो चुके हैं. So that is why in verse 12 of chapter 6 Paul is telling, even though all things are lawful unto me, but all things are not helpful or all things are not. इसलिए 6 के बारे में लिखा है कि भले कि सब कुछ करने के लिए मेरे पास आजादी है, लेकिन सब कुछ करने में नहीं मेरा लाभ है. And then again Paul is telling, even though all things are helpful or lawful to me, but I will not be brought under the power of any. इस तरह हम बड़े ऊपर सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु मैं किसी बात के आदि नहीं होगा. So this is a reply which Paul is giving to all the people who were shouting in the church by telling that all things are lawful and we can do whatever things in the body according to the lust that is formed in us. ये तो पौलुस का प्रतिक्रिया के स्वरूप उन लोगों के, वो स्वतंत्रता के लिए जो लड़ रहे थे, उन लोगों के विरुद्ध प्रतिक्रिया था, रिप्लाई था पौलुस का कि सब वस्तुएं भले मेरे लिए उचित है, लेकिन मैं किसी के अधीन में न होऊंगा. Yeah, so why this liberal, they got such authority and they started to shouting
is because of the miscommunication that they got because of the previous letter which Paul wrote. क्यों इस तरह एक झुंड तैयार हुआ जो अपने शरीर की स्वतंत्रता का इच्छा का पूरा करने के लिए वे खड़े हो गए, वो बात को विश्वास करने लगे कि ऐसा करना उचित है, क्योंकि पौलुस की जो प्रथम जो लेखा था जिसमें उसने कहा कि हम लोग कानून में नहीं अनुग्रह में, इस बात को लेकर उन्होंने एक गलत अर्थ निकाल दिया. Yeah, so one of the major mistake which they came was that when Paul said that we can eat all the meat that is available in the market. क्या कारण से ऐसा हम लोग बोल सकते कि ऐसा वे लोग अपने स्वतंत्रता में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं बोल रहे थे? क्योंकि Paul said in the previous letter that we can eat all the meat from the market. क्योंकि पौलुस ने अपने पहले खत में एक ऐसा वचन लिखा था कि हम लोग सब प्रकार का मांस खा सकते हैं. Because whenever we feel hungry, we have the liberty to eat whatever we want. क्योंकि जब भी हम लोग को अगर भूख लगे तो हमारे पास सारे स्वतंत्रता है कि जो हमारा मन चाहे उसका हम भोजन का आनंद उठा सकते हैं, खा सकते हैं. Yeah, please do not bring any law and tell that you should not eat this, you should not eat that. But brothers, since we are in the grace, we are free to eat whatever we have according to the control of the Holy Spirit. कृपया करके कोई कानून ना लाए कि कुछ भी मांस हम कोई मांस है जो नहीं खा सकते या कोई मांस है उचित है केवल वही खा सकते हैं. नहीं, ऐसा मत कहो करके. So when Paul had written this in the previous letter, what happened that the miscommunication that they had got was that now since the body is used, the main function that the body is used is for, one is for food and the other is for sex. Brother, can anybody translate? क्या हुआ? I'm feeling little weak. I didn't sleep. अरे. So one thing that during those days when the people they come to know is that the body is used for two things. The outer body, one is for eating food and the other is for using for sex. और ये शरीर को दो तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, एक तो व्यभिचार के लिए और दूसरा खाना खाने के लिए. Yeah, so why? Because these two things can be done based on the urges and the lust that the body gives. और ये दो बातों को हम सफलता कर सकते हैं क्योंकि वो जो अभिलाषा है जो ये शरीर का जो स्वभाव जो शरीर का प्रकृति हमें देता है वो स्वभाव के वजह से ये अभिलाषाएं आ सकता है. So what happened was earlier the people when they were scared they would not eat all type of food. तो जब भी लोग डरते थे कि बहुत टाइप्स के फूड जो खाना है वो खा नहीं सकते थे. Because they were scared because of the law. क्योंकि वे लोग बहुत डरे हुए थे व्यवस्था के कारण. But when Paul made them understand that we are not under the law and under the grace and we have the freedom to eat the food because when you feel hungry you can eat it. और प्रेरित ने ये ज्ञान दिया कि तुम अगर भूखे हो तो ये खा सकते हैं, इसमें व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है करके समझाया. Yeah, dear brothers, I am only just giving a background of verse 12 and 13. This is just the understanding of the brothers who have written the commentary that is written. This is not exactly mentioned in the Bible. This is just the understanding derived what and the church history that have they read. Based on that, I am telling. और मंडली का जो चरित्र है और भाइयों का जो इसका विवर्तन है उसके पीछे जो इतिहास है वो सिर्फ मैं केवल इधर प्रस्तुत किया हूँ 12 और 13 वचन के द्वारा. Yeah, so I am coming to the point. So what happened was when Paul said that whenever you feel hungry, you have the freedom to eat to fulfill your stomach. That was misinterpreted by these liberal people. और ये जो खाना जो तुम खा सकते हो, sorry अच्छा I didn't get you. So when what happened was when Paul said that because we are under the grace and not under the law, therefore whenever you feel hungry, you have the freedom to eat whatever you want. Okay.
सो जब भी प्रेरित पौल कहता था कि तुम क्योंकि अनुग्रह के नीचे अधीन में हो और तुम व्यवस्था के अधीन में नहीं, जिसके वजह से तुम्हें जो भी खाना है वो तुम्हें पूरा स्वतंत्रता के साथ तुम खा सकते हो, व्यवस्था को ना देखकर। Whenever you feel hungry. और जब भी तुम भूखे पड़ जाते हो तब। So whenever you feel hungry in the body, you have the right to eat the food. और जब भी तुम शरीर में भूखे पड़ जाते हो तो ये तुम्हारा अधिकार है कि तुम खाना खा सकते हो। So this sentence was misquoted by the liberals, and they said that if we have the freedom to eat whatever we want, then in that case we have also the freedom to fulfill the lust and the urges that is coming to the body, and we can do fornication. ओके, ये बहुत ही मिस इंटरप्रेट किया गया था वो उधर के शास्त्र लोगों ने, क्योंकि वे लोगों ने कहा कि क्योंकि इस तरह का अगर हमें अनुमति और स्वतंत्रता है तो हमें हमारा शारीरिक अभिलाषाओं को भी पूरा करने का स्वतंत्रता भी हमें मिलना चाहिए है। Yeah, because at that time the people thought that body is used for only two things. One is for eating and other is for fornication, because that was the common culture there. क्योंकि वो उधर का सामान्य एक रीत रिवाज था और समाज में ऐसा चलता आया था कि ये शरीर जो है दो बातों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक खाने के लिए और दूसरा व्यभिचार के लिए। And the hunger and this fornication, it is triggered by lust. और ये जो भूख और ये व्यभिचार जो है ये पूरी तरीके से शरीर के अभिलाषाओं से सामर्थ्य बन जाता है। Yeah, so if a person is hungry, so he can lust for the food and he can eat whatever you want. That was the misunderstanding that they got. और ये बहुत बड़ा एक गलत सोच वे लोगों के बीच में आ पड़ा कि अगर तुम भूखे हो तो तुम्हारा शरीर में जो अभिलाषाएं आते हैं भूख को तृप्त करने का, ये गलत नहीं। So at the same time, if you have any urges to do fornication, you can also do that also. और अगर इसी प्रकार अगर वो हो सकता है तो अगर तुम्हें व्यभिचार करने का कोई अगर शरीर में अभिलाषा आया है तो वो भी तुम कर सकते हो। इस प्रकार का भी जो समझ है वो उस जमाने वो जो समाज के लोगों में आया था। So because of that, Paul is writing verse 13. जिसके वजह से प्रेरित पौल इधर वचन 13 कहता है, He is telling that meat is for the belly. No doubt when you feel hungry, the food is for the belly. देखो भोजन तो पेट के लिए है, मतलब तुम्हें कभी भी जो भूख लगता है तो वो पेट के लिए। And whatever the belly urges, that is for the food that you want to eat. और पेट जो है वो भोजन के लिए, मतलब पेट जो बातों का अभिलाषा करता है वो भोजन के वस्तु के लिए है। But Lord will destroy both of it. परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। Yeah, this is based on the understanding of what Jesus said in the epistles. ये यीशु मसीह ने जो प्रकाश किया हुआ ये प्रेरितों के द्वारा जो एपिस्टल्स में जो पत्रों में लिखा गया है उसके विषय में इधर कहा गया है। What Jesus said in Mark chapter 7, based on that, Paul is telling. तो ये मरकुस के सुसमाचार 7वां अध्याय में यीशु ने कुछ बातें कहा, वो नींव रखते हुए, ये ध्यान में रखते हुए प्रेरित पौल उधर कह रहा है। Yeah, in Mark chapter 7, मरकुस का अध्याय 7, if you read from 14 to 23, we can understand that Jesus is telling something about the food that is entering and what defiles the man. और वचन 14 से 33 तक जब भी हम पढ़ते समय में उधर हम देखते हैं कि जो भोजन जो है वो जो मुंह के अंदर जो जाता है वो नहीं मलिनता करता, इस प्रकार के जो बातें कह रहा है। So then what defiles the man? लेकिन क्या वो मनुष्य को क्या बात है जो उसको मलिनता करता है? Yeah, because from verse 18 onwards when we read, वचन 18 से जब हम पढ़ते हैं, that we see that, do ye not perceive that whatsoever things that entereth into man, it cannot defile him? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती? Why? Because whatever entereth into, because it doesn't enter into the heart, it enter into the belly, and whatever enters into the belly, it purges all the meat, it purges all the food. क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है, यह कहकर उसने सब भोजन
वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। So what happens is whatever food that we eat, according to the principle which God gave it to the body, whatever we eat for the belly will digest it and it will be purged off, it will be cleaned off. और ये जो हम जो भी भोजन खाते हैं वो पूरी तरीके से हमारा पेट को डाइजेशन सिस्टम वो कार्य करता है, और परमेश्वर ने ये इस तरीके से मनुष्य का तैयार किया है कि इस तरह डाइजेस्ट किया जाता है, और वो पूरी तरीके से वो शुद्ध करके वो पूरी तरीके से वो शुद्ध हो जाता है। शुद्ध ठहराया जाता है। Yeah, so that is why food will never defile the heart of man. तो भोजन जो है वो कभी भी एक व्यक्ति का हृदय को अशुद्ध नहीं करता। Same thing Paul is telling that here is that the meat, even though meat is for the belly and the belly is for the meat, but God will destroy both. The food will be destroyed in the stomach and the belly will be destroyed when the man dies. और ये प्रभु कहना चाहता है कि परंतु परमेश्वर इस दोनों को भी नाश करेगा। मतलब जब ये जो भोजन है वो जब भी पेट पर जाता है वो भी नाश हो जाता है, और ये पेट जो है वो भी नाश होगा जब भी व्यक्ति मरता है। But when you do fornication in the body, लेकिन जब तू व्यभिचार करते हैं that is a different aspect. वो बहुत ही अलग है माहौल है। That will defile you. That is why you should not do fornication. वो तुम्हें पूरी तरीके से तुम्हें वो अशुद्ध करता है, इसीलिए तुम व्यभिचार ना करो। See, that is what Jesus also said in the next verse in Mark chapter 7. इसके लिए यीशु ने ही खुद से कहता है अगले वचनों में, मरकुस के सुसमाचार 7वां अध्याय If you read from 20, we can see that, and then what will defile a man? That which come out of the man that defileth a man. लेकिन क्या है वो बात जो मनुष्य को अशुद्ध करता है? वचन 20 में हम देखते हैं जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। In that verse 21 we can see fornication. वचन 21 में हम देखते हैं व्यभिचार। Yeah, so when the fornication, when it comes to the body, that will defile the man. लेकिन जब व्यभिचार मनुष्य करते हैं तभी वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। Then verse 23. वचन 23, All these evil things come from within and defile the man. ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। That is why Paul is telling and making the people understand that even though you can eat to satisfy the for the hunger that is coming for the stomach, but when it comes to the matter of satisfying your fleshly lust, you do not do that. देखो ये तो सच है कि पेट का जो अभिलाषा है ये तृप्त करने के लिए तुम भोजन तो खा सकते हो, लेकिन ये जो तत्व है तुम इधर नहीं ला सकते। जिधर ये व्यभिचार करने के लिए जो अभिलाषा आता है वो तुम ये शरीर पर तृप्त कर सकते हो, ये जो बातें हैं तत्व है तुम इधर नहीं ला सकते। प्रेरित पौल कहता है Yeah, please do not mix two things into one. ये दोनों बातों को तुम मिलाओ मत। Because whatever food that you eat for the satisfaction of, because of the lust that generated, that food will be destroyed in the stomach. क्योंकि जो अभिलाषा तुम्हारे में आया था, जो भोजन के लिए था, जो पेट में जो अभिलाषाएं करते हैं, वो अभिलाषा जो है वो भोजन जब भी खाने के बाद वो भोजन पूरी तरीके से उधर वो पूरी तरीके से नाश हो जाता है। Yeah, but when you are doing fornication based on the lust that is generated in your body, if you do that, it will defile you. लेकिन जो अभिलाषा है जो व्यभिचार के द्वारा जो आता है वो तुम्हारे शरीर को नाशी नहीं, वो तुम्हें अशुद्ध करता है। Why? Because the body is not for fornication. क्योंकि शरीर जो है व्यभिचार के लिए नहीं तैयार किया गया है, But it is for the Lord. लेकिन वो प्रभु के लिए, And the Lord is for the body. और ये प्रभु देह के लिए। That is why we cannot use the body for fornication. इसीलिए हम व्यभिचार के लिए हमारा शरीर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। Now, why Paul used the term fornication here? और इधर प्रेरित पौल क्यों इधर व्यभिचार करके ये जो वाक्य इधर इस्तेमाल किया है? Because the liberals were using this word term fornication to satisfy their own lust. क्योंकि लिबरल्स को क्या बोलते हैं? Liberals जो स्वतंत्र झुंड, जो स्वतंत्र जो झुंड है वो अपने अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए शरीर को इस्तेमाल कर सकते करके वो समय में सोचते थे। Yeah, this same principle, now the body is not for fornication. We can also use the same principle which is mentioned in Mark chapter 7. और मरकुस का सुसमाचार 7वां अध्याय में हम देखते हैं We can use the same principle here and we can say that
the body is not to be used for adultery, fornication, murder, theft, covetousness, wickedness, lewdness. We have to use this also as a principle. और वही तत्व जो है हम व्यभिचार के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो तुम नहीं शरीर पे कर सकते हो, वही तत्व जो है इधर मरकुस का सुसमाचार 7वां अध्याय 21-22 में भी वही तत्व है। उधर हम देखते हैं मनुष्य के मन में बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या और स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, ये सब बातें हैं, ये नहीं कर सकते हैं करके इधर भी वही तत्व हम ला सकते हैं The body. ये शरीर में। Why? Because the body is for the Lord, क्योंकि देह जो है वो प्रभु का है and the Lord is for the body. और प्रभु देह के लिए। And what will do the Lord? The Lord God who raised the body of Jesus Christ, He will also raise our body also. और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया है, उसी तरह हमारे शरीरों को भी वो जिलाएगा। But if our body is defiled and contaminated and we are using it to serve for our own lust, अगर हमारा शरीर मलिनता हो गया, अशुद्ध हो गया और हमारे कुछ अभिलाषाओं के लिए अगर हम इस्तेमाल कर रहे हो तो, if it is defiled because of the lust that we used, और वो अगर अशुद्ध हो रहा है, अगर हमारा कुछ शारीरिक अभिलाषाएं पूरा करने के लिए है तो, then in verse 9 we can clearly see it is said that such a person cannot inherit the kingdom of God. तो हम देखते हैं वचन 9 में कि उस प्रकार का जो व्यक्ति है वो परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होगा। That is why Paul is trying to make the people understand that we cannot use the body for fornication. इसीलिए प्रेरित पौल इधर वापस दौड़ाता है कि हम हमारा शरीरों को ये व्यभिचार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। And then Paul is trying to make them understand in verse 15 that our bodies is actually the members of Christ. और ये प्रेरित पौल इधर कहता है कि वचन 15 में कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है। And that is why we cannot use it to become a member of the harlot. और ये हम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकर ये वेश्या के अंग नहीं बना सकते। Because God has forbidden that. God forbid. क्योंकि ये कदापि नहीं होना चाहिए, परमेश्वर का वाणी। Because what happened when you are one with the harlot, when who is joined to the harlot is one body with her. क्योंकि अगला वचन में हम देखते हैं जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है। But because the Lord wants our body, क्योंकि परमेश्वर को हमारा शरीर का जरूरत है। why? Because he who is joined to the Lord is one spirit with him. क्यों? क्योंकि प्रभु की संगति में रहता है, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। God, that is why Lord, now while we are living in this church age, in the Christian age, Lord wants to use our body so that we can be one with the Lord in one spirit. इसीलिए मंडली का ये युग को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है ताकि ये शरीर को वो इस्तेमाल करे और वो उनका शरीर के बढ़ोतरी के लिए, कलीसिया मंडली के बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करे। Just like when Jesus was in this world, he was controlled and governed by Father God. जिस तरह प्रभु यीशु मसीह संसार में होते वक्त पूरी तरीके से पिता परमेश्वर से ही पूरी तरीके से नियंत्रित था। And Jesus said that I and my Father are one. और यीशु कहता है कि मैं और मेरा पिता एक है। Same way, Paul is trying to make the people understand that in the same way, in the church age that we are living now, the Christian life that we are living now, our body is used so that we can be one with the Lord. उसी तरह प्रेरित पौल कहता है हमारा शरीरों को हम इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए जिधर वचन 17 पूरा हो जाता है कि प्रभु की संगति में रहते वक्त हम उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। That is why we have to flee from fornication, verse 18. इसलिए हमें व्यभिचार से भागना है। Why? Because when we commit fornication, we are sinning against our own body. क्योंकि हम जब व्यभिचार करने वाले अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। And God doesn't want that we should sin against our own body. और परमेश्वर ने नहीं चाहता कि हम हमारे शरीर के विरुद्ध पाप करें। Why? Because don't you know that the body is the temple of the Holy Ghost? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? And which is in you, which ye are of God, and ye are not your own. और जो तुम में बसा हुआ है और तुम परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। Yeah, so now that is why Paul is telling that now this body cannot be used according to your own desire to fulfill your own lust. इसके लिए ये शरीर को तुम तुम्हारे अभिलाषाएं पूरा करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। But the body is used to glorify the Lord. लेकिन ये शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। For you were bought with a price. क्योंकि तुम्हें एक मोल देकर खरीदा गया।
We can read that when we read in First Peter chapter 1, we can see that price is nothing but the blood of Jesus Christ. हम देखते पहले पत्रोस में पढ़ते वक्त वो मोल और कुछ बातें नहीं, लेकिन यीशु मसीह का लहू के बारे में कहता है। Just for better understanding, we can read First Peter chapter 1. पहला पत्रोस पहला अध्याय हम पढ़ते हैं। 21 है शायद। Yeah, verse 18 and 19. 18 और 19 पढ़े। For as much as you know that you have been not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversion received by traditions from your fathers, but with the precious blood of Christ as of his lamb, without blemish and without spot. क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन को बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। Sorry, yeah. So through the blood of Jesus Christ we were bought. तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, वो बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें खरीदा गया। That is the price which God had paid. ये दाम है परमेश्वर ने चुकाया। Which Jesus paid to the Lord, to God. और यीशु मसीह ने ये दाम परमेश्वर अपना पिता के लिए चुकाया। So that Jesus Christ can satisfy and can परमेश्वर को क्रोध, he can control the wrath of God. और ये परमेश्वर का क्रोध जो है उसको पूरी तरीके से वो संभाल सकता है ये दाम देकर। To quench the wrath of God. ये परमेश्वर का क्रोध को पूरी तरीके से क्षमा करने के लिए। So that is why what we are supposed to do now, this body cannot be used for our own purpose, but it should be used to glorify the Lord. इसीलिए हम ये शरीर को हमारे कुछ अभिलाषाओं के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन प्रभु के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। So that is why when we are reading from chapter 6 verse 12 onwards, this is talking to a different group. 6:12 से जब हम पढ़ते हैं तो ये बहुत ही अलग झुंड के विषय में इधर कहते हैं। And when you read in chapter 5, that is talking to a different person. और अध्याय 5 से जब हम देखते हैं तो वो भी अलग ही व्यक्तियों के साथ उधर डील किया गया। Then in chapter 7, when we read there, it is the matter of marriage and fornication. और अध्याय 7 में जब हम आते हैं और उधर विवाह का और उधर व्यभिचार के विषय लिया है। That should we have a good relationship in marriage, or should I have the freedom to do not marry and go outside the marriage and have fornication? तो क्या वो शरीर में रहते समय हमें विवाह में वो रिश्ता बनाया जाना चाहिए, या हम विवाह कर भी हमें वो शरीर के उसके बाहर, विवाह बंधन के बाहर भी हमें इस तरह का व्यभिचार करने का जो अनुमति है, क्या हमें इस बातों का अनुमति है? ये सारे विषय और मुद्दा उधर बात किया गया है। That we can see in chapter 7, Paul is addressing to that matter. और अध्याय 7 में प्रेरित पौल जो है ये विषय को लेकर बात करके हम देखते हैं। Yeah, so I hope the brothers got a clear picture and understanding of chapter 6 verse 12 onwards. 6:12 से जो प्रकाश है वो भाइयों को मिला है करके मैं ये विश्वास करता हूँ। Praise the Lord. Amen. और वो भाई का बहुत अच्छा भाई ने बहुत अच्छी रीति से बांटा। I think what brother shared has a very valid truth in that why Paul must have written in this certain manner. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि भाई ने जब ये बात बोलते समय में मैं ये विश्वास करता हूँ कि वो बातों में सच है, क्योंकि उसके आधार पर रहेगा शायद पौलुस ने ये सब बातें 6:12 से ऐसा सब बातें लिखा होगा। We praise and thank God for the truth that is coming out to help us understand the study of Corinth properly. और मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु ने इस तरह ये सच्चाई को इस तरह रीति से प्रकट करके बताया, ताकि हम लोग जो पहला कोरिन्थ का जो विषय में जो हम लोग पढ़ रहे हैं और अच्छे से और गहराई से हम पढ़ सके। And so we begin in chapter 7 with respect to how a man needs to conduct with opposite sex. और फिर अभी हम अध्याय 7 से हम शुरू करेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि एक व्यक्ति किस रीति से, एक पुरुष किस रीति से एक स्त्री के साथ
या फिर एक स्त्री कैसा पुरुष के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए. And so he talks about when it comes to physical contact, there is absolutely no need for any brother to touch any sister. और फिर जब शारीरिक रीति से किसी को स्पर्श करने का विषय आता है तो पुरुष को स्त्री को छूने का अनुमति नहीं है, कोई भी कारण नहीं है वो लेकर वो छू नहीं सकता. Now since we are living in modern era where there is no difference of between man and woman, we do not consider, so the simple greetings like handshake and all is considered as a normal way of greeting between man and woman. परंतु हम एक अभी ऐसे एक समय में जी रहे हैं जहां पर उन दिनों में पुरुष और स्त्री में बहुत भेदभाव होता था, परंतु अब जो समय में जी रहे हैं उस रीति का भेदभाव नहीं है जैसा उन दिनों में था. इसलिए आज के जमाने में एक स्त्री या पुरुष अगर हाथ मिलाता है, शेक हैंड करता है, हाय हेलो बोलता है, वो एक आम बात है. Actually, this is not the Indian culture also, where we shake hands to greet one another when they meet. और ये तो देखा जाए तो ये भारतीय संप्रदाय नहीं है. आप देखते हैं कि एक पुरुष और स्त्री जब मिलता है तो वो लोग हाथ मिलाते हैं और कैसे हो करके बोलते हैं हाथ मिलाकर. ये भारत में तो निर्माण नहीं हुआ था. In various churches, they shake hands when they meet one another, and they shake hands by and say and greet, praise the Lord, which is not at all seen in anywhere written to do in the Bible. और अब देखते हैं कि किस तरह आज के जमाने में जब दो भाई लोग या दो भाई या बहन लोग मसीह के लोग भी एक दूसरे को मिलते हैं समय में हम लोग हाथ मिलाकर हम लोग प्रेज लॉर्ड बोलते हैं. स्त्री भाई या बहन भी करते समय में जो हम किधर भी बाइबल में भी हम देखते नहीं है कि इस रीति से उन दिनों में वो लोग ने एक दूसरे को मिलकर प्रेज लॉर्ड बोलता था करके. Anyway, my point that I am wanting to tell is like Paul starts in this manner when it is coming when it comes to matter of touching a woman. This is how certain care we need to take. So that is why इसके लिए हम लोग पौलुस ने जब ये मुद्दा को शुरुआत करते समय में वो ये बात बताना चाहता है कि ये उचित नहीं है कि अच्छा नहीं है कि पुरुष स्त्री को छुए. So in the sense, so a person who's filled with the spirit, with a lustful spirit, when he touches a woman with an improper attitude, a weaker sister or a weaker woman can come under the attack of the spirit. तो वो क्या होता है जब एक पुरुष जो अभिलाषा के आत्मा से जब वो भरा हुआ रहता है और उस अभिलाषा के या व्यभिचार के आत्मा से वो नियंत्रित रहता है, उस नियंत्रण से उस गंदे सोच से और विचार से जब वो पुरुष वो एक स्त्री को छूता है, क्या होता है कभी कभी स्त्री जो कमजोर पात्र है वो पुरुष इस रीति से छूने की वजह से वो दुष्ट आत्मा जो पुरुष पे था वो स्त्री पर भी कब्जा करने का कोशिश करता है और स्त्री को भी गिरा देता है. So a simple contact, physical contact can lead to fornication, a bigger sin, and end up into fornication later on. क्योंकि एक छोटा सा स्पर्श करना, एक छूना, जो छू ले तो जो एक आम बात है छूना, वो आगे चलकर व्यभिचार जैसा बड़ा पाप में गिर जाने का संभावना है. So that's why in verse 2 he says, nevertheless to avoid fornication, he writes like that. Nevertheless to avoid fornication, let every man have his own wife. इसीलिए वहां पर दूसरा वाक्य में पौलुस वहां पर लिखता है, परंतु व्यभिचार के डर से एक पुरुष की पत्नी और एक स्त्री को पति हो. तो वो इस रीति से पौलुस क्यों लिख रहा है? वहां पर ये बताना चाहता है कि छूने से जो व्यभिचार का डर जो खौफ आ सकता है, जो पाप आ सकता है, वो नहीं आने के लिए, वो व्यभिचार में नहीं गिर जाने के लिए क्या करना, एक पुरुष एक स्त्री पत्नी को रखना और एक स्त्री एक पति को रखो. So Paul here guides as a wisdom. He doesn't want to create any let any trouble takes place in the future. So he gives a very clear line policy to maintain, a decent policy to be maintained in the church. That when it comes to physical contact, let there be no, even in the name of greeting, let there be no physical contact unnecessarily between any man and woman.
तो इसके लिए पौलुस वहां पर आगे चलकर एक पुरुष और स्त्री में कुछ गड़बड़ी ना हो, व्यभिचार के पाप में ना गिरे और कोई भी रीति का गलत काम ना होने के लिए, यहाँ तक कि कलीसिया में भी एकत्र होते समय में एक भाई या बहन और संगति के विषय के लिए, यानी कि छू कर बात करने का विषय में भी आगे चलकर उस वो भी व्यभिचार का कारण ना बनने के लिए पौलुस वहां पर कलीसिया में एक आम कानून लाता है, एक ऐसा बात लाना चाहता है कानून के तौर पर, जहां पर बताना चाहता है कि कोई आगे चलकर ना गिरे, इसलिए विवाह को वहां पर बीच में लाता है। It does not require that a man has to be filled with some kind of spirit of lust. Even the natural man, a natural person also, if he likes certain girl in a church, it is very clearly understandable that whenever he meets her, whom he likes, when physically when she comes close to him and he contacts her physically, possibly he can have vibes which is definitely not sisterly, which has got flesh involved in it. और ये विषय में हम देखते समय में भले ही एक पुरुष को इस रीति का व्यभिचार का आत्मा का वो नियंत्रण में भले ही ना हो, फिर भी एक संसारी पुरुष एक विश्वासी स्त्री को यदि अगर छूते समय में शायद वो व्यभिचार का इच्छा के अनुसार नहीं रहेगा, फिर भी ऐसा रीति में ऐसा संभावना हो सकता है कि एक संसारी पुरुष जब एक विश्वासी स्त्री को छूते समय में वो विश्वासी स्त्री को शायद इस छूने के स्पर्श के वजह से या फिर वो पुरुष के साथ कुछ आकर्षण हो जाता है, आकर्षण होने का संभावना हो सकता है, जिसके वजह से वो विश्वासी बहन, विश्वासी स्त्री वो संसारी पुरुष के साथ गिर सकता है। I didn't mean that way. What I'm trying to say is, I am a believer. Okay, suppose I'm a believer. I'm unmarried, but I like certain sister in the church, and it so happens. So whenever I see her, I feel very nice towards her, and that interest, with that interest, when I go and whenever she comes in front of me, she shakes hand with me when she greets me. That touch will, the feeling of that touch or the need or want to touch that sister is a different kind of touch. It's not the normal shake hand which we do normally with other people. So it does not require that a person has to be filled with any spirit of lust. A natural person, it's natural for even believers to get an affection towards certain sister. That is natural. That is normal. So, but Paul says, let there be no contact with such virgin or with any such sister or woman. Only married people may, if they need to, they want to contact, they can contact physically, they can do their own wife, but let them not have any physical contact or touch any woman. Otherwise, let this policy be maintained. मेरा कहने का मतलब यह था कि उदाहरण के लिए एक विश्वासी भाई हो, एक विश्वासी भाई कलीसिया में एक अविवाहित बहन को कलीसिया में जब वो देखते समय में उसको हम देखते हैं कि एक स्वाभाविक रीति से एक आकर्षण होता है जो व्यभिचार का आत्मा नहीं रहेगा परंतु स्वाभाविक रीति से रहता है। और जब भी ये भाई वो बहन को देखते समय में स्वाभाविक रीति से उसके अंदर एक खुशी रहता है, एक आनंद रहता है उस बहन को जाकर मिलना, उससे बात करना, जो स्वाभाविक है, जो एक आम बात है, स्वाभाविक रीति का विषय में भी हो सकता है जिसके पीछे व्यभिचार का कोई उद्देश्य ना हो। तो ऐसा विषय में भी हमें बहुत ही संभाले रहना है, इसमें भी हमें एक दूसरे के विषय में हमें अलग रहना है, क्योंकि पौलुस ये बात बताना चाहता है कि तुम्हारा कोई भी कारण हो, कलीसिया में भी क्यों ना हो, तुम एक पुरुष और एक स्त्री एक दूसरे को नहीं चुनना चाहिए, परंतु अगर वो कलीसिया में पति पत्नी हो तो कुछ बात अगर विषय आता है तो वो पुरुष अपना पति को छू रहा है, कुछ बात बताने का विषय हो, वो अलग बात है, परंतु उसके अलावा कोई भी पुरुष और कोई भी स्त्री एक दूसरे को ना छुए। No, for such people, if there are a brother and sister who are past their the childhood age and they are now at their youthful age, where the flower age is gone of the sister, she's become now young virgin, presentable for marriage, and a certain man feels attraction towards certain sister in the church, so it is not wrong to have such an affection. If he feels that this affection he is having developed for certain sister, he can talk to the elders and then he can talk to the parents, and then the parents can get them married, so the affection can come there. But so what we are trying to say, it is not just the spirit of lust. For that reason he is stopping. It is saying that in the church, let this policy be that let no man touch a woman.
तो इसकी तो यहाँ unless until they are married. तो स्वाभाविक रीति से हम देखते समय में उदाहरण में एक पुरुष है जो थोड़ा बड़ा, एक लड़का है जो थोड़ा बड़ा हो गया है, और एक स्त्री है कलीसिया में जो थोड़ी बड़ी हो गई है, और विवाह का उम्र, दोनों को विवाह का उम्र में हो गया है। और ये पुरुष जब ये भाई जब ये बड़ी हुई बहन को जब देखते समय में उसको एक प्रकार का आकर्षण है जो स्वाभाविक रीति से है। तो ये आकर्षण जब देखते समय आम तौर से देखा जाए तो ये आकर्षण के हिसाब से वो गलत तो नहीं है, परंतु फिर भी उसके पास अधिकार नहीं है छूने के लिए। इस रीति से उसको आकर्षण अगर हो जाता है कलीसिया के बहन के पास, वो भाई के पास पूरा अधिकार है कलीसिया के प्राचीनों के पास जाकर, बुजुर्गों के पास जाकर इस विषय में पूछने के लिए, या फिर वो लड़की का हाथ मांगने के लिए वो बहन का माता पिता के पास जाकर भी विवाह के विषय में बात कर सकता है। और फिर कलीसिया के प्राचीन और बुजुर्ग और माता पिता के जो लड़की के माता पिता है, अगर वो लोग सहमत है तो इस विषय में वो लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो लोग आगे बढ़ा सकते हैं, शादी करा सकते हैं। परंतु मेरा विषय यहाँ पर ये है कि मैं बताना चाहता हूँ कि जब तक कलीसिया में जो विवाहित पुरुष और स्त्री है, जो पति पत्नी है, वो लोग छोड़ और कोई भी एक दूसरे को कोई भी कारणवश छुए ना, ये एक सिद्धांत होना चाहिए जो कलीसिया में रहे। सिर्फ व्यभिचार का मोह के उद्देश्य में नहीं, परंतु स्वाभाविक आकर्षण भी अगर रहा लड़का लड़की के खिलाफ में, उस विषय में भी नहीं छूना चाहिए। Because it can lead up into fornication before marriage. क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ऐसा संभावना है कि विवाह से पहले ही व्यभिचार हो सकता है, इसके लिए ऐसा ना करें। So and it is improper in the church to have a fleshly relationship with any woman before marriage. और ये कलीसिया में इस रीति का रिश्ता रखना, इस तरह का कार्य करना बहुत गलत बात है, सही नहीं है कलीसिया में बिना विवाह के पहले इस तरह का कार्य होने के लिए। These things happen in the world, but in the church it ought not to be. ये तो संसार में तो ये बहुत आम बात है जो हो रहा है और चलते रहता है, और उस दिनों में होता भी था, परंतु कलीसिया में ऐसा नहीं होना चाहिए। So there is a difference between a wife and a virgin. इसके लिए पत्नी और कुंवारी दोनों में फर्क है। So unless until that virgin is not become your wife, Paul says to maintain that it's not good to touch a woman. तो जब तक वो कन्या, वो कुंवारी तुम्हारा पत्नी नहीं बनती, तब तक तुम्हारे पास अधिक वो सही नहीं है उसको छूने का। This is Paul's जजमेंट। तो क्योंकि ये परमेश्वर का न्याय है। This is Paul's judgment. ये पौलोस का न्याय है। So for example, now we'll see the A part of chapter 7 verse 34. और वही 7 का हम लोग 34 पे जब हम पढ़ते समय में verse A part only. ये उसका शुरुआत का भाग में ही हम देखते हैं। There is a different, विवाहित और अविवाहित में भेद है। See, this is what Paul is trying to say. When we meet a brother or sister, for all those who are unmarried young boys, this truth what Paul is writing here, or this wisdom what Paul is writing here, let this policy be maintained. तो वो सारे अविवाहित नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ कि तुम लोग में ये सिद्धांत रहना चाहिए जो पौलोस यहाँ पर बताना चाहता है, अविवाहित और अविवाहित में भेद है करके, ये तत्व वो सब अविवाहित नौजवानों में रहना चाहिए। Yeah, so there is a difference between wife and a virgin. और एक विवाहित और अविवाहित यानी कि शादीशुदा और एक कन्या में दोनों में फर्क है। Okay, and verse 36. और उसका 36 पे जब हम पढ़ते हैं, और यदि कोई ये समझे कि मैं अपने उस कुंवारी का एक बार रहा हूं, तो पढ़ेंगे 36। Very hard. If any man thinks that he behaved himself uncomely toward his virgin, if she passes the flower of age and needs so require, let him do what he will. He sinned not. Let them marry. If a man desires certain virgin, if he is feeling that among all the sisters, for this particular sister I am having a different affection and different feeling,
if she is past certain age and if they both are consenting, then they are not sinning, having an affection for them. Let them first marry, without marrying, do not go and touch, and express your fleshly feelings towards one another, your affection to one another. Let them first marry. 36 पढ़ना हिंदी में। और यदि कोई यह समझे कि मैं अपनी उस कुंवारी का हक मार रहा हूँ जिसकी जवानी डल चढ़ी है, जैसा चाहे वैसा करे, पाप नहीं, वह उसका ब्याह होने दे। देखो ऐसा उस कलीसिया में अगर ऐसा होता है कि एक कुंवारा लड़के को एक कुंवारी बहन से बाकी सारे कुंवारी बहनों से इसको ये बहन में या इस कुंवारी स्त्री पर ज्यादा आकर्षण है, या उसको ऐसा एक उसके विषय में उसको आकर्षण अगर रहता है उस बहन के विषय में, तो इस विषय में कोई उन लोगों को रोके ना। वो उन लोग इस विषय में अगर बात कर रहा है तो वो लोग पाप नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन लोग दोनों को अगर ये विषय आग्रह आ चुका है तो उनको विवाह करने दो, यही सही है। Instead of burning, with desire, and trying to control that, and it's better to get married. तुम लोग ये एक दूसरे का इस तरह का आग्रह आने के वजह से वो लोग अंदर अभिलाषा से वो लोग बढ़ रहे हैं और एक आग्रह आ रहा है, उस आग्रह को नियंत्रण करने से बेहतर है कि उन लोगों को शादी करने दो। So every young brothers, I advise, if you have to be very clear in your understanding with the Lord, and ask and pray, if you really want to marry or not. And if you want to marry, you're desiring good. If you're not wanting to marry, you're desiring an excellent thing. But nevertheless, if you cannot control yourself, then it's better to marry, than remaining unmarried. So this is all regarding how much you can excel in your consecration towards the Lord. इसके लिए मैं सारे कुंवारों को मैं ये बताना चाहता हूँ, यदि तुम लोग इसलिए प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को अच्छी रीति से समर्पण कर तुम्हारा विवाह के विषय में आते समय में ये अच्छी रीति से प्रभु की उपस्थिति में तुम समर्पण करके तुम प्रभु की ओर से तुम ये जानो, यदि तुम विवाह कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, परंतु क्योंकि तुम्हें नियंत्रण करने नहीं हो पा रहा है, अपने आप को अपना जो आग्रह और विषय जो तुम्हारे अंदर आ रहा है उसको नियंत्रण करने नहीं हो रहा, क्योंकि तुम्हारा उम्र हो गया है और नियंत्रण करने नहीं हो रहा है और तुमने शादी किया तो अच्छी बात है, परंतु ये सब आग्रहों को तुम नियंत्रण करने हो पा रहा है और विवाह नहीं करता तो उससे भी अच्छा है, परंतु फिर भी नियंत्रण नहीं करने होता हम जानते हैं, इसलिए विवाह करना उत्तम बात है, परंतु ये प्रभु की ओर से हमें ये जानकर ये हमें करना है। So Paul had a special gift of staying apart from any woman and having self-control at the same time. It was not like he was unmarried, but burning desire was there in him, and he was fighting that desire, and to show others that I am such a holy man, therefore I am not having any wife. Look at me, see how I am single. There was no such hypocrisy in him. He was not only a married man without a woman, but he was also not having any desire for that, because he was totally captured. His soul was raptured for the Lord. He was in divine love with the Lord Jesus Christ. His soul status, the state of his soul was so much filled with satisfied with the that ecstatic pleasure, which in godliness he found contentment in that, and that surpasses the fleshly hunger. In such cases, the fleshly hunger doesn't come. Actually, doesn't come. पौलोस का विषय में अगर देखा जाए तो पौलोस एक खास व्यक्ति था, उसके जीवन में इस रीति से कुंवारा रहने की वजह से जो एक आग्रह उत्पन्न होना चाहिए, जो कुंवारियों को देखते समय में इस रीति का, इस विषय का कोई भी अवस्था पौलोस के अंदर नहीं था, क्योंकि वो उसने उस रीति से प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करके रखा था। पौलोस कोई कुकर भी नहीं है या कोई झूठा व्यक्ति नहीं है कि बाकी लोगों को दिखाना चाहता है कि मैं कितना, देखो मैं कितना बड़ा आत्मिक हूँ, मेरे पास पत्नी नहीं है, मैं इस तरह का आग्रह नहीं रखता। इस तरह बाहरी दिखावट का बातें स्वभाव नहीं था उसके अंदर,
परंतु सचमुच वो प्रभु के साथ का संगति में वो एक हो गया था, प्रभु के साथ का उस विषय में, संगति का आनंद का विषय में वो इतना आगे बढ़ चुका था कि शारीरिक इस विषय का शारीरिक अभिलाषा उसको छूता नहीं था, क्योंकि परमेश्वर के विषय में भक्ति पूर्वक रहना ही उसमें वो तृप्त होने का पदवी अवस्था में वो पहुंच चुका था। इसके लिए पौलुस को ये विषय में ये विषय उसको गिराता नहीं था। Therefore, he writes in verse 7 and 8 and 9. इसीलिए वो 7, 8 और 9 में वो इस तरह कहता है, Chapter 6, it's better to marry, but this is not, out of concession is saying. 6, 7 and 8, 9. इसलिए Or 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9. 7, 8 में 9 में, इसलिए वो कहता है कि इस विषय में 7, 8, 9 पढ़े, 7, 8, 9 मैं यह चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसा ही सब मनुष्य हो, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ, परंतु यदि वे संयम न कर सके तो विवाह करे, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। बस। Do we understand here? From this we understand that Paul wished that you all may choose the excellent, that is to be loosed from having a wife. तो इसके लिए क्या आप लोग ये वाक्य पढ़कर आप लोगों को बात समझ में आ रहा है क्या? पौलुस का जो आग्रह है कि तुम अपने आप को तुम दूर रखो, किस रीति से पत्नी ना रहने से जो अवस्था हो सकता है उस अवस्थे में तुम रह सकते हो क्या? So boys who want to remain single for the Lord have to check very clearly yourself, before deciding whether you want to remain single or whether you want to remain married. You need to discern depending upon how much you can live without the opposite sex, with how much you can control yourself. Based upon that only you can decide there. तो इसके लिए जिसको विवाह करने का जो आग्रह नहीं है करके ऐसा कोई मन अगर आता है, उन युवकों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम सबसे पहले अपने आप को परखो और जांचो कि किस रीति में तुम अपने आप को नियंत्रण में तुम ला रहे हो क्या नहीं, क्योंकि वो प्रभु के कार्य के अनुसार है। हर एक व्यक्ति प्रभु ने जो दिया वरदान के अनुसार है जो कार्य करता है। इसके लिए तुम्हें अगर कुंवारा ही बना रहना है, विवाह में नहीं प्रवेश करना है, तो सबसे पहले अपने आप को जांचो तुम कितना अपने आप में इस विषय में नियंत्रण कर सकते हो कि नहीं, उसके बाद ही तुम ये निर्णय लेना कि विवाह करना है कि नहीं। But this is only a properly gifted person from God. Only they can exercise control upon their self. Such people only should remain unmarried. परंतु मैं ये विषय बताना चाहता हूँ कि जो अविवाह करने का, जो विवाह नहीं करने का जो निर्णय है, ये वास्तव में वही व्यक्ति कर सकता है जो प्रभु के साथ एकदम गहरा रिश्ता में जिसने प्रवेश कर चुका है। वही जो प्रभु का सही चाल चलन में चलता है वही वो कर सकता है, सब लोगों के लिए नहीं है। The pleasure derived from the union of our soul with the God Spirit is the highest intimacy pleasure, which alone can help a person overcome any other natural pleasure. क्योंकि हम एक बात समझना है कि एक व्यक्ति का एक प्राण, एक व्यक्ति जो प्रभु के साथ का संगति में रहते समय में उस समय में जो व्यक्ति वाला तृप्तता और आनंद और समृद्धि और संयम का जो अवस्था आता है, वो सिर्फ प्रभु के साथ रहने समय में ही जो सबसे ऊंचा पदवी का दर्जा है तृप्तता का, वो प्रभु के साथ रहते समय में ही पूर्ण रीति से उस संपूर्ण वो तृप्तता उस व्यक्ति को उसके अंदर आ सकता है। We were all carnal, we were all fleshly ones, without having any power of God upon us. So our journey began, when the day we were born again, and from that time onwards, our journey from flesh and turning towards spirit began. So each day we are becoming more and more spiritual, and the more we are becoming spiritual, the more our natural flesh, which we were bonded off, is now becoming loose. We are not feeling tendency to commit those sins easily, which in flesh we used to normally commit. So the more we become spiritual, and the lesser and lesser
the power of flesh would hold us to cause us to obey its pleasure. हम लोग सब लोग एक समय में पाप के दशा में थे, हम लोग सब लोग शारीरिक थे, स्वाभाविक थे, अपने अभिलाषा में फंसे हुए थे, गिरे हुए थे। परंतु हमारा जीवन में परिवर्तन तब से आया जब हमारा नया जन्म हुआ। जब हमारे अंदर नया जन्म होते समय में हम लोग वास्तव में शारीरिक अभिलाषा से, उस समय से शारीरिक अभिलाषा से हम लोग दूर होकर आत्मिक रीति से हमारा बढ़ोतरी वहां पर शुरू हुआ था। तो एक विश्वासी जितना उसके जीवन में बढ़ोतरी होते रहता है, उतना वो शारीरिक अभिलाषा से वो विदा कर शारीरिक अभिलाषा, आकांक्षी विचार और जो भी बातें जो उसके खिलाफ रहता है शरीर में, वो सब बातों से वो जितना वो आत्मिक रीति से बढ़ोतरी पाता है, उतना वो उस बातों में उन्नति पाकर शारीरिक अभिलाषा से दूर होकर, उससे पार होकर आत्मिक रीति में वो जीता है। If a person is not having any tendency to seek the Lord and to desire the Lord and to seek only oneness with the Lord and the pleasure and the joy, the first love and the happiness which came in encountering his Lord, when that light dawned upon him and he was filled with love and seeing the mercy of God, when a person is enchanted with such love, when he decides that I want to just love this Lord and now want to be with this Lord only. And if he is not captured by this pleasure that comes by union in union with the Spirit, then what will happen is such a person cannot overcome the desire that in natural flesh abides. तो इसके लिए एक विश्वासी को जरूरत होना चाहिए। लेकिन एक विश्वासी के जीवन में यदि वो प्रभु में आने के बाद भी कभी भी उसने वो पहला प्यार का अनुभव उसने नहीं किया हो, प्रभु के साथ का बढ़ोतरी अगर वो चाहता ना हो, प्रभु के साथ का संगति ना चाहता हो, प्रभु में जो खुशी और आनंद, जो तृप्तता उसको पहले दिन में जब उसको मिला था, उस विषय में अगर उसको बढ़ोतरी नहीं है, वो आनंद नहीं है, प्रभु के साथ का संगति का खुशी नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा विश्वासी कभी भी अपने शारीरिक अभिलाषा के खिलाफ वो जीत नहीं सकता। And so as he becomes, when he becomes young, when I was saved, I was around 15 years old. At that time, I did not have any desire to get married, and my only desire was my Lord. And I decided for myself that I will remain unmarried. And I was enjoying the love of the Lord. I was carried away with the love of the Lord, and I was serving the Lord night and day. I was in the Bible night and day, and I would complete the Bible fully. I did all that thing in my initial running. But in that time, I never thought I would marry. And that journey began. And I never even thought of my career. I never ran behind making money like all my other friends of my age. They went after different schools of studies. They went after different colleges. They went after higher studies. They went after in different countries to and started looking for the job and career. But I was serving like a servant in a small church in Andheri. And I never regretted, because I was serving the Lord night and day. मुझे याद है जब पहले दिनों में, क्योंकि जब मैं 15 साल का था तभी था मेरा नया जन्म हुआ था, और उन दिनों में प्रभु का उस प्रेम मुझे इतना विवश कर चुका था कि मैंने तभी निर्णय ले लिया था कि मैं आगे शादी नहीं करूंगा, क्योंकि उस समय में किस रीति से मैं प्रभु का सेवा करूं वही मेरा मन में दौड़ता रहता था। दिन रात में वचन में ध्यान करता रहता था, कलीसिया का सेवा में बना रहता था, सुसमाचार बांटता था, बाइबल को मैं बहुत बार में पढ़ता था, रीति का मनोभावना में हमेशा रहता था, अवस्था में रहता था प्रभु के उन्नति में। मेरा उम्र के उस समय में, मेरे उम्र के साथ साथ मेरे जो दोस्त थे, उन लोग तो दुनिया में बहुत कामयाबी पा लिए थे। उन लोग ने पढ़ाई कर और भी बड़ा पढ़ाई शिक्षण में गए, वो लोग अलग अलग देशों में गया और आगे का पढ़ाई शिक्षा, और वो लोग बड़े हो गए। परंतु मैं उधर एक आम व्यक्ति के समान एक साधारण विश्वासी था, कलीसिया में साधारण रीति से मैं सेवा करता था। इस तरह से एक जीवन में मैं उन शुरुआती दिनों में मैं जिया। Even I was in my business which I was handed over to me from my father. Even that company also I was not able to handle properly, because I was always behind ministry and spiritual matters, and people started complaining that these people, after having become believer, after becoming into Christianity, they have messed up their life, they have ruined their life, they have ruined everything, even what fathers earned for them. And in this way I had earned bad name. But I only knew from the Lord that whatever was it, the law, it was out of Lord's love, only to love the Lord, only to
to live for the Lord, I considered this world as nothing. I considered that in this world I didn't want to become somebody great, and I always everything. I left, I lost, I sacrificed everything just for the ministry's sake. तो इसके लिए जब मुझे मेरे पिता की ओर से जब मुझे वो उनका उनका व्यापार जब मुझे मिला, उनका धंधा वो बिजनेस जब मुझे मिला था, तो वो बिजनेस को भी कैसा चलाना है, व्यवहार कैसा करना है, ये सब मुझे सही रीति से मुझे मालूम नहीं था। जो भी मैं कार्य करता था, काम करता था, पिता ने मुझे जो काम दिया था वो भी मुझे सही रीति से करने होता नहीं था, बल्कि उस समय में प्रभु का सेवा कैसा करूं, ये सब बातों में रहता था। उस समय में बहुत से रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी लोग, सब लोग बोलते थे, देखो पिता ने उसको इतना कमाई करके दिया है, परंतु ये यीशु के पीछे चला गया, अब देखो कितना अपना जिंदगी को बर्बाद कर दिया, इसने ऐसा किया वैसा किया। जब लोग इस तरह मेरे बारे में बुरा भला बोलते थे, तभी भी मुझे तो बस एक ही बात जाता था, किस तरह प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु का मार्ग को मैं कैसा पूरा करूं, और वो प्रभु का इच्छा को पूरा कर मैं अपना समय बिताना चाहता था। But after a certain age came, when I grew up, a certain age came, when manhood came, when I started realizing the real facts of life, I started having certain affection for certain sister, and then I developed that. Then I realized that I cannot remain single, and then my entire life then was given to gaining that sister for to get into marriage. So what I'm trying to say is that this feeling and affection that I will stay for the Lord pure and a bachelor, I will not get married. These all needs to be checked very clearly. And then for that reason, I started, putting my mind. Now I should start earning money. I should start, earning, start working, so that if I get married, then I have to take care of my wife. Then slowly, my mind, turned away from that pure mind, that childlike mind which I had before, to serve the Lord day and night, slowly withdrawing. Now I started thinking about, how to now start making money to run a family. तो इसके लिए फिर मेरा इस जीवन में इस तरीके से मैं अपने आप को नम्र करते हुए प्रभु का सेवा कर रहा था, और प्रभु का इच्छा को पूरा करने के लिए मेरा मन को मैंने रखा था उस बचपन का समय में, जब मेरा नया जन्म हुआ था। परंतु थोड़ा आगे चलकर मैं थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा पुरुषत्व मेरे होने की वजह से, बढ़ोतरी पाने की वजह से क्या हो गया, मेरे अंदर एक खास बहन के ऊपर मुझे आकर्षण हुआ, और उस बहन के साथ मुझे विवाह करने का, इस रीति का रिश्ता, एक आकर्षण का विषय उस बहन के मेरे जीवन में मुझे हुआ। इसकी वजह से उस बहन को कैसा भी करके उसके साथ मुझे विवाह करना है, इस विषय का मेरा बात आया। तो इस रीति से मुझे एक बात समझ में आया था कि एक समय में जो मैंने अपने आप को शुद्ध और निष्कलंक रखा था, और प्रभु को सेवा के लिए मैं रहूंगा करके जो मनोभावना मैंने बोलकर रखा था, क्योंकि मेरे अंदर इस तरह का इच्छा और आग्रह, स्वाभाविक आग्रह आने की वजह से मैं उस रीति से, उस विषय से मैं गिर गया। किस रीति से मैं एकदम सौम्य और नम्र था, परंतु मैं बदल गया। फिर मेरे अंदर विचार आने लगा, यदि मैं अगर शादी कर रहा हूं तो मुझे मेरा परिवार को संभालना होगा, तो मुझे कमाना पड़ेगा, पैसा संभालना पड़ेगा मुझे, इसीलिए मैं कमाने के विषय में और काम करने के विषय में उसमें मेरा मन लगने लगा। इसलिए धीरे धीरे प्रभु की ओर जो मेरा मन जो सीधाई और निष्कलंकता था, वहां से हटकर मैं किस तरह अभी मैं मेरा परिवार को मैं किस तरह सेवा करूं, पति का मैं कैसा उसको संभाले रखूं, घर को कैसा चलाऊं, ये सब बातों में मेरा मन चला गया। इसलिए प्रिय, मैं बस आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ, यदि शुरुआत में, आरंभ में हम लोग शायद ये पक्का निर्णय ले लेंगे, प्रभु का प्रेम से भरकर मैं विवाह नहीं करूंगा, परंतु ये विषय को हमें बार बार हमें परखना है और जांचना है, क्या सचमुच प्रभु आपके विषय में मेरा यही इच्छा है क्या। And that, but while I was compromising, and I lost that first love for the Lord, and I started getting little worldly, getting into world and getting into affairs of the world, I realized, that I'm losing my Lord, and I'm somewhere, that sister became idol in front of me, and that I started living for that sister instead of, living for God. And slowly, I understood that I'm becoming, chained to gain that sister. I lost that first love which I had for the Lord, and slowly things ended up in a big mess, and God had to intervene and deal with me.
और जिसकी वजह से अब आगे चलते चलते ये क्या हो गया था, मेरा अवस्था इतना बुरा हो गया था कि एक समय में जो प्रभु के लिए मेरा मन था, अब वो बहन को पाने के लिए मेरा मन चला गया। मैं किस तरह से संसार में, संसार की बातों का, संसार की वस्तुओं के पीछे मेरा आग्रह आग्रह बढ़ने लगा, जिसकी वजह से मुझे समझ में आने लगा कि प्रभु की बातों में मेरा दिलचस्पी कम हो रहा है और संसार की बातों में मेरा दिल ज्यादा बढ़ रहा है, बोलकर किस तरह उस बहन को मैं पाऊं, उसके साथ विवाह करूं। इस तरह मैं एक बंधन में, एक जंजीर में फंस गया था और प्रभु की इच्छा के खिलाफ मैं प्रभु से मैं दूर होते जा रहा था। और आगे चलते चलते एक बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ, जिसको प्रभु को आकर मेरे जीवन में प्रभु को एक बहुत बड़ा कार्य करना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे बहुत बड़ा हानि उठाना पड़ा। So why I'm sharing my story to you is just to encourage you, young boys who are not married, just to encourage you. I'm saying this, all these things, so that always remember that giving life, you have given your life to the Lord. You have Christ, you have invited Christ as your personal savior. The Lord is zealous Lord. He wants to be the first in your life. Even if you are married, even if you're not married, He is jealous God. He wants to remain first in your life. And so when I started replacing the Lord with other person, when it became idol, the Lord had to deal, and the Lord had to take away that person, that idol, away from my life. I was totally broken and devastated. I lost everything, even in business. God had to strongly come and deal with me. So this way, then I realized that Lord, I was gained back to the Lord. I understood that all this is nothing. All this is just the worldly temporary pleasure. And then God started restoring and renewing my mind back again. And then Lord became my priority afterwards. तो ये सब बातें मैं इसके लिए बताना चाहता हूँ उन कुंवारे लोगों को, जिनके जीवन, जो अभी भी कुंवारा है और इस ऋतु में वो लोग प्रभु के प्रेम में वो बढ़ रहे हैं। बस उनको मेरा जीवन का एक कथा मैं इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि मैं उन लोगों को प्रोत्साहित करके मैं बता सकूं कि किस तरह हमारे जीवन में कार्य और निर्णय कैसा होता है आगे चलकर। जब मेरा विषय था इस विषय में, जब वो जो बहन जिसको मैं चाहता था वो मेरे लिए मूर्ति के समान बन गया था, उसी के पीछे मेरा हमेशा मन लगता था। जब प्रभु से मेरा स्थान हट गया और वो बहन मेरे लिए बन गया, तो प्रभु को एक बहुत बड़ा कार्य मेरे जीवन में करना पड़ा और वो मूर्ति जो वो स्त्री था उसको मेरे जीवन से हटाना पड़ा। और उसी समय में मेरा धंधा, मेरा बिजनेस में भी बहुत नुकसान मुझे उठाना पड़ा। ये सब बातों में प्रभु बहुत बड़ा कार्य कर मुझे बात समझाने लगा कि तू देख किस तरह प्रभु से दूर हो गया है, क्योंकि प्रभु हमारा प्रभु जलन का परमेश्वर है। ये जलन का प्रभु हमसे, भले हमारा शादी हुआ हो या ना, विवाहित हो या ना हो, प्रभु हमारे जीवन में पहला स्थान चाहता है। हमारे जीवन में, हमारे क्षेत्र में, सब बातों में प्रभु पहलौठा स्थान चाहता है। यदि कोई प्रभु का वो स्थान छोड़कर मैं कोई और चीज, कोई वस्तु, कोई और व्यक्ति को अगर मैं पहला स्थान लेगा, हमारा परमेश्वर जलन का परमेश्वर है और वो कार्य करेगा। और वही मेरा जीवन में हुआ। इस तरह मैं उस बहन को भी खो बैठा और धंधा भी जब मैं खो बैठा, तो प्रभु ने उसी समय में बहुत बड़ा दया का कार्य जो मेरे अंदर ये हुआ कि ऐसे समय में मैंने प्रभु को मैंने दोबारा पा लिया, जिसकी वजह से उस समय में मुझे प्रभु ने मुझे वो अक्ल और समझ दिया। भले ही वो स्त्री के समय में मुझे बहुत निराशा तो हुआ, परंतु प्रभु ने मुझे समझाया और मुझे बचाया, वापस आत्मा का आनंद में मुझे लेकर आया और फिर मुझे समझाने लगा ये सब बातें संसार की अभिलाषा और संसार की बातें की चीजें हैं जो कुछ पल के लिए है। असली आनंद, असली तृप्तता मसीह में है। And then from there on my journey began, and I started seeking the Lord night and day like before. And then slowly then suddenly I started thinking, because I lost everything, there was no money with me left, and I started thinking probably it's my original desire to remain single, probably that may be my calling. And I began to think like that. And I started loving the Lord and just living for Him. That was the time I was, in the church. I was doing maximum, ministry possible. That time, Jebu and all, or nobody was there, and I was the one doing everything. Translating for everybody there, and ministering, doing evangeling, going everywhere, meeting young brothers, going house to house meeting. I was doing everything that time. And I was only loving the Lord and serving the Lord, just desiring the Lord only. तो और इसी रीति से जब प्रभु ने वापस मुझे पुनर्स्थापित किया, तो मेरे जीवन में फिर से वो अवस्था आया, वो पहला भूख और प्यास जो प्रभु के लिए था वो वापस दोबारा आया। तो तब मैं प्रभु को पूछने लगा कि शायद मेरा इच्छा शायद यही रहेगा
कि मैं कुंवारा रहूं और पूर्ण रीति से मैं प्रभु का सेवा करूं। तो ये उन दिनों में था जब मैं दोबारा लौट कर आते समय में कलीसिया में जब मैं दोबारा आया और भाइयों के साथ संगति में रहा, और सब बातों में कलीसिया के सब कार्यों में मैं आगे रहता था, कलीसिया के सेवा के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए, संगति में भाईचारा का और भाइयों के घरों में जाकर मिलना, सब बातों में, ये सब बातों में मैं आगे रहता था, क्योंकि मुझे वो वापस वो प्यार का अनुभव प्रभु से मिला था और मैं उसी मन में मैं प्रभु का सेवा कर रहा था। So I thought this may be my calling, that that I should remain single. मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा बुलावा यही है कि मैं कुंवारा रहूं। Brother, I just want to tell you that what your real calling is, whether to remain single or married, God knows. Whether you may know or not, but God knows. परंतु प्रियो, मैं आप लोग एक बात बताना चाहता हूँ, हमारा सच्चा बुलावा क्या है कि मैं भले मैं अकेला रहूं या कुंवारा रहूं या विवाहित रहूं, ये शायद मैं नहीं जानता, परंतु प्रभु ये बात जानता है। वो ही मेरा जीवन का नियंत्रण करने वाला प्रभु है। When you were born on the earth, your physical with the physical birth, you did not choose to decide to be born. It is God who gave you birth in this world, right? क्योंकि जिस रीति से जब मैं इस दुनिया में जब मेरा जन्म हुआ, मेरा शारीरिक रीति से जन्म हुआ, तो मैंने नहीं निर्णय लिया कि मैं कहां पर जन्म लूंगा, बल्कि प्रभु निर्णय किया था कि मैं किधर कौन सा परिवार में जन्म लूंगा। Or to be born under which parents I chose, or it is God who brought it. तो किसने निर्णय लिया था कि जब मैं जन्म लेते समय में मेरा माता पिता कौन होना चाहिए? क्या मैंने निर्णय लिया कि प्रभु ने चुना? To be born again also, did I choose or God chose? यहाँ तक कि मेरा नया जन्म का विषय में भी आते समय में क्या उसमें भी मैंने निर्णय लिया कि प्रभु ने निर्णय लिया? In same way, whether to remain single or not, I should choose or should God choose that? उसी रीति से मेरा विवाह करने का विषय भी आते समय में क्या वो मुझे निर्णय लेना है कि प्रभु को निर्णय लेना है? Of course, circumstances and situation around us matter. We can choose to, according to the situation, for temporary time, we can choose that this is not the right time to marry. That basic law is about wisdom to choose the timing of whether to remain single or married. That is another thing. परंतु ये जो विषय जो है कि कभी कभी हमारे जीवन में हमारा परिस्थिति शायद ऐसा हो सकता है कि सबका अलग अलग परिस्थिति होता है। कभी कभी परिस्थिति और हालात इतना बुरा हो जाता है जिसकी वजह से हमको समझ और बुद्धि मिल जाता है कि हमें लगता है कि हाँ, अभी शादी करना सही नहीं रहेगा इस मुकाम में। वो तो छोटा बात का थोड़े समय की बात है जहां पर हमें समझ प्रभु दया देता है कि हमें अभी विवाह नहीं करना चाहिए। परंतु मेरा जीवन में आगे चलकर क्या मैं आगे चलकर सचमुच में विवाह करूंगा या शादी रहूंगा कि नहीं, वो मेरा हाथ का निर्णय नहीं है। Praise the Lord. So that should not become our decision forever. Ki now that means I will remain single. या तो इसीलिए आज के हालात के वजह से आगे चलकर वो हालात का कारण मेरा कारण नहीं होना चाहिए कि आगे चलकर मैं शादी करूंगा ही नहीं, अविवाहित रहूंगा करके, वो आज का हालात के वजह से नहीं होना चाहिए। Paul very clearly says this is a calling, this is a gift from God. He mentions that in the study which we will take. This Yes. is and so what he's trying to say is that during the present, because of the present distress, what did he say? For example, he says, nevertheless, verse 28. इसलिए हम लोग पौलुस एक बात वहां पर कहते हैं, not in 28 चैप्टर, okay, I will not take that. Let's take this. Okay, what he's trying to say is those who really what to remain unmarried is an excellent thing, but nevertheless, if you cannot control, you should marry. इसके लिए प्रभु पौलुस वहां पर ये विषय को अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि वो जानता था कि ये एक वरदान है जो प्रभु ने ये वर दिया है, बुलावा है जो प्रभु की ओर से है। इसलिए तुम विवाह नहीं कर रहे तो ये तो उत्तम बात है, बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि तुम्हें नियंत्रण नहीं है तो तुम विवाह करना चाहिए। Why it is excellent and why marrying is little comparatively secondary. और ऐसा क्यों है कि तू अविवाहित रहा तो वो ज्यादा उत्तम है विवाह करने से? Because in verse 32, ये 32वां वाक्य जब हम पढ़ते समय में,
32 पढ़ेंगे। Because a person will not have anything to care about apart from the Lord. क्योंकि उस ऐसा अवस्था में रहते समय में जब वो कुंवारा रहेगा तो उसको प्रभु के अलावा और कुछ बातों में वो विचार नहीं करे, क्योंकि प्रभु को कैसा प्रसन्न करे वही बात का मन उस पर रहेगा। So 32 and 33. 32 और 33 पढ़ते समय में 32 33। सो मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता न हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को क्यों ही प्रसन्न रखे। 33. परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि से प्रसन्न रखे। You see, understand this is the reason Paul is saying. Because when you have wife, what happens is you are constantly you're thinking of the Lord also, but at the same time you have to think about your wife also. So you because Lord is not getting an undivided attention. तो इसलिए ये कारण की वजह से पौलुस वहां पर कहना चाहता है एक विवाहित और अविवाहित का फर्क में, क्योंकि यदि तू तेरा विवाह हो जाता है तो तेरा मन में क्या रहेगा, अपना पत्नी को कैसा प्रसन्न करे और प्रभु को कैसा प्रसन्न करे। इस रीति से जो व्यक्ति संपूर्ण रीति से प्रभु को मन देना चाहिए था, उसका मन अभी विभाजन हो गया है, आधा इधर आधा उधर हो गया है। So, but because of the present distress, he is allowing, verse 26, but his choice is, verse 26, can we read? परंतु परिस्थिति के आधार को देखते हुए हमें समझना है कि प्रभु ये बात को चलने दे रहा है। उसका 26 पढ़ेंगे। So, मेरी समझ में यह अच्छा है कि आजकल के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। So a man has to very clearly balance his life. He has to understand that according to the present situation, he needs to discern, well, if I marry now, I mean, will it be like from frying pan to fire, or will it help me further, So according to the situation, he says that you decide. इसके लिए पौलुस यहाँ पर वचन के 26 के बताना चाहता है कि तुम्हारा ये अभी का परिस्थिति के अनुसार, यानी कि जो क्लेश से तू जा रहा है उसके परिस्थिति के अनुसार तू देख, तू न्याय कर, तू परख कि तेरा परिस्थिति सही क्या है। यदि तुझे विवाह रहना है, विवाह करना है, शादी करना है कि नहीं, क्योंकि अगर तू शादी कर रहा है तो क्या कर रहा है, आग के भट्टी से तू शायद डायरेक्ट आग में कूद जाता रहेगा। ऐसा ना हो, ज्यादा क्लेश में ना होए, या फिर कर दिया तो क्या प्रभु को इसका महिमा हो सकता है क्या। इस रीति से परिस्थिति में तो क्या उचित है वो तुझे निर्णय लेना है आत्मा में। In verse 7, what he says is, for I wish that all men were even as I myself. परंतु वाक्य 7 में वहां पर पौलुस कहना चाहता है कि मैं चाहता हूं कि सब मनुष्य परंतु मेरे जैसा रहे जैसा मैं हूं। But he then says, nevertheless, if you cannot have control, if your burning desire is, then you better marry than remaining single. परंतु अगर तेरे अंदर वो आग्रह है और तुझे नियंत्रण करने नहीं हो रहा है तो तू ये बात उचित रहेगा कि तू विवाह कर ले, उसको नियंत्रण करके मत रख, बल्कि तू विवाह कर ले। So between not married and between getting married, there is also one more thing that you need to consider. तो इसके लिए शादी करना है क्या नहीं करना है, ये बात का निर्णय लेते समय में उसमें और एक बात है जो तुझे समझना है। That is verse 26. जो है 26वां वाक्य में, according to the present time distress, according to the situation, think, of course, if you cannot control and you're burning desire, you marry. But before marrying, think. According to the present distress, what they were going through, Paul's wisdom was that these people should not marry. तो इसके लिए पौलुस वहां पर कह रहा है, भले ही तेरे अंदर अभिलाषा, तेरे अंदर वो नियंत्रण करने का बात भले ही ना हो और तुझे विवाह करने का आग्रह है, तो भी उस समय में तू उस समय का परिस्थिति को देखकर तू जांच और तू परख कि सचमुच इसमें आगे चलकर तेरा लाभ हो क्या नहीं। इसके लिए क्योंकि पौलुस ने उस समय के विश्वासियों को जब वो देखते समय में उनका हालातों को देखकर पौलुस को लगता था कि उन लोग विवाह नहीं करना चाहिए था। So this is temporarily refraining from getting married. It is not because your calling is unmarried, therefore don't marry. Understand this, my subject, what I'm trying to tell. जैसे इसके लिए हमें एक बात समझना है, तुम्हारा अभी का परिस्थिति को जानकर, वर्तमान में तुम्हारा जो परिस्थिति को देखकर तुम्हें निर्णय करना है
कि अभी विवाह के विषय में है कि नहीं। ये ऐसा नहीं है कि परिस्थिति अभी वर्तमान परिस्थिति को देखकर आगे चलकर तू बिल्कुल शादी नहीं करेगा, उस तरह का निर्णय के लिए नहीं पौलुस यहाँ पर कहना चाहता है, परंतु अभी का परिस्थिति को देखकर क्या ये तुझे लाभ हो के नहीं, ये बात को तुझे परखना है। If they do not, choosing not to marry is excellent, but but not marrying and burning up desire is worst. तो ये अगर तूने विवाह नहीं कर रहा तो एक उत्तम बात है जो तूने निर्णय लिया है, परंतु विवाह नहीं किया और तू नियंत्रण तू कर नहीं पा रहा और उस नियंत्रण और उस मोह में तू जलते जा रहा है, तो वो एक बदतर बात है, वो बहुत बुरा बात है, मतलब वो एकदम और गिरने का कारण बन जाएगा। Paul is very clear that if you are deciding not to get married, it is a gift from God. It is a calling from God. Only those people only can have a special power also coming to control. तो इसके लिए पौलुस कहता है कि यदि कोई निर्णय लेता है कि मैं विवाह नहीं करूं तो वो एक बहुत उत्तम बात है और प्रभु उसके ऊपर दया देता है, प्रभु उसको एक वर देगा कि वो सब बातों को नियंत्रण कर सके, क्योंकि वो प्रभु की ओर से वो बुलावा है अविवाहित रहने का। In verse 7 it is very clear. He says, I wish all men were even as I myself. But see, the word but is there. It is a gift from God. तो वाक्य 7 में वहां पर पौलुस कहता है कि मैं ये चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसे सब रहे, परंतु देखो ऐसा जैसा मैं हूं वैसा सब लोग रहे करके पौलुस बोलने के बाद वहां पर परंतु आया है, एक वहां पर एक शर्त है। So if that gift is not operating on you, you cannot exercise self-control like me. तो क्योंकि परंतु तुम्हारे ओर से परमेश्वर की ओर से एक विशेष वरदान तुझे मिलना होना चाहिए। यदि अगर वो विशेष वरदान जो पौलुस के पास था नियंत्रण करने के लिए वैसा अगर वरदान नहीं है तो फिर तुम लोग उसको विवाह करना अच्छा है। Then instead of burning the desire in you. तो अगर उस अभिलाषा को वो जलने से अच्छा है कि तू विवाह कर ले। But to those who are now having burning desire and wanting to get married, they don't fasten up and get married immediately. There is a situation, there is a timing for everything, for which verse 26 warns us. और उसी तरह में तो अभी तुम्हारे पास इस तरह का नियंत्रण करने का अवस्था नहीं है और तुम्हें विवाह करना है करके ये विषय सोचने के बाद भी तुम लोग विवाह करने के लिए जल्दबाजी नहीं कर रहा, चलो अभी शादी कर लेते, इस रीति का जल्दबाजी नहीं कर रहा। उसके विषय के लिए वाक्य 26 में लिखा है कि तुम्हें परिस्थिति को देखना है, हालत को देखना है, वर्तमान का क्लेश का अवस्था को समझकर तुझे वो फैसला लेना है। Many people have ended up marrying before time and without any blessings of the elders, without the blessings of the church, without the blessing of God, and they have shipwrecked themselves. I have known and I've seen such people. इसीलिए क्योंकि जल्दबाज की वजह से मैं कितने विश्वासियों को जानता हूँ, वो लोग जल्दबाजी कर बैठते हैं विवाह करने के लिए और प्राचीनों का आशीर्वाद उनको नहीं रहता, कलीसिया का आशीर्वाद उनको नहीं रहता, प्रभु का सहमति नहीं रहता, जिसकी वजह से वो लोग विश्वास रूपी जहाज उनका डूब चुका है। ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा है। These are totally, absolutely carnal, no spiritual minded, or totally, a piece of flesh they are. तो ये वास्तव में ये पूर्ण रीति से वो लोग स्वाभाविक रीति से वो लोग निर्णय लेकर स्वाभाविक लोग हैं, ये लोग शारीरिक लोग हैं, पूर्ण रीति से शारीरिक नियंत्रण के अभिलाषा में फंसकर वो लोग निर्णय लिया हुआ बात है, प्रभु का कोई भी हाथ नहीं था उसमें। And then he guides them, so there's a timing for things, and according to the timing, then you may get up and get married. इसके लिए पौलुस वहां पर लोगों विश्वासी लोगों को खास रूप में नौजवानों को समय बताता है कि ये हर चीज के लिए एक समय है, यदि सही समय आया तो तू विवाह कर ले। In verse 27 it is very clearly, if you are bound to a wife, you feel that I cannot remain single all my life, I need a wife, I need a helpmate, then do not try to seek to be loosed. तो इसके लिए वहां पर 27 जब पढ़ते समय में यदि तेरा पत्नी है और तू 27 पढ़ना, 27 में पढ़ते हैं, यदि तेरी पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न न कर, और यदि तेरी पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज न कर। This is in conjunction with verse 9. और ये वाक्य 9 के साथ तुलना के जुड़ा हुआ है। वाक्य 9 पढ़ना। यदि वह संयम न कर सके तो करे, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है।
And so, what does it mean with Paul? Let us, before I close, I want to share a lot of things, but time is already, we are too late. Before we close, I want to examine Paul properly and present Paul to you. What was Paul actually all about? इसलिए मैं कुछ समय के लिए पौलोस का अवस्था क्या था मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ. What do you think? Paul was a single man and never married. आप लोगों को क्या लगता है कि पौलोस कुंवारा था और उसने कभी भी शादी नहीं किया था? According to the verses written here, it looks like he didn't have any wife or he was not married. Verse 7. सातवां या इस अध्याय के वाक्यों में पढ़ते समय में ऐसा लगता है कि पौलोस ने जीवन में कभी शादी किया ही नहीं था करके पढ़ते समय में ऐसा लगता है. में वाक्य 7 जब हम पढ़ते समय में, For I wish that all men were even as I myself, like without any wife. और मैं चाहता हूँ कि जैसे कि सब मनुष्य मेरे समान रहे, कि बिना पत्नी का रहे. So everybody thinks Paul was an unmarried person. ये वाक्य पढ़कर ऐसा लगता है कि पौलोस ने जीवन में कभी शादी किया ही नहीं था. But it is not so, brother. परंतु प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा Paul was a member of Sanhedrin. देखो उस समय का जो फरीसी लोगों का झुंड, अब देखते समय में वो फरीसी लोगों का झुंड में पौलोस भी उस फरीसी का झुंड का वो भागी था. And only a married person have the right to become the member of Sanhedrin. So they are the people who generate law, they make law, and an unmarried person cannot actually know anything about marriage life. So he cannot be a mentor or he can be teacher of law if he does not know anything about marriage. तो सनेद्रिन करके एक बहुत बड़ा झुंड है जो यहूदी लोगों के इस्राएल के बीच में रहता है. वो सनेद्रिन का खासियत यह है कि वो सारे फरीसी लोगों में जो सबसे होशियार और बुद्धिमान लोग हैं उन लोगों का झुंड है. मतलब वो फरीसी लोगों का एकदम ऊंचा झुंड रहता है. उस ऊंचा झुंड का अगर कोई भी फरीसी को, अब जानते हैं कि पौलुस भी एक फरीसी था एक समय में, यदि कोई भी फरीसी को उस सनेद्रिन का भाग बनना है, झुंड बनना है, तो विवाहित रहेगा तो ही उस झुंड का भाग बन सकते हैं. और इतिहास गवाह है इस बात का कि इतिहास में हम देखते हैं कि पौलुस वो सनेद्रिन का झुंड था. क्योंकि सनेद्रिन का झुंड बनना है तो विवाह करना जरूरी है. क्योंकि वहां पर वहां के फरीसी लोग वो लोग निर्णय करते हैं कि व्यवस्था कैसा लागू करे, कैसा कामकाज करे, विवाह के विषय में क्या कार्य करे. ये सब बातों के लिए विवाह का तजुर्बा होना जरूरी है. जो अविवाहित है उसको सनेद्रिन का झुंड में लिया नहीं जाता था. इसलिए पौलुस विवाहित था, इससे मालूम पड़ता है क्योंकि वो सनेद्रिन का झुंड में था. But sir, then if he was married, then why does he say that you remain just as I am? What does it mean by that? फिर पौलुस अगर शादीशुदा था तो फिर क्यों वाक्य 7 में ऐसा कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम सब मनुष्य मेरे समान बने रहो. Look at verse 8. We can derive some understanding. Yes, I और said, पढ़ते समय में हम थोड़ा समझ सकते हैं. verse 8. I say therefore to the unmarried and widows. परंतु मैं अविवाहित और विधवाओं से ये विषय में कहता हूँ. विधवाओं, It is good for them if they abide even as I. Means और मैं अविवाहित और विधवाओं के विषय में कहता हूँ क्योंकि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ. जैसा मैं हूँ. So what is that? तो उसका मतलब क्या है? It means, who's a widow? Widow is a person who does not have her husband anymore. तो विधवा कौन है? विधवा मतलब वो है व्यक्ति जिसको उसके साथ जो उसको विवाह किया हुआ वो पार्टनर उसके साथ अभी नहीं है. See, probably from this we can derive that this is just an understanding based upon this sentence that Paul, who was once married, now probably his wife is no more, and he's become estranged from his wife. I mean, he's become a widower. Yes, इस वाक्य से हमें ये बात को हम समझ सकते हैं कि हमारे इस विषय में जब पौलुस कहता है अविवाहित और विधवाओं के विषय में बोलते समय में तुम लोग मेरे समान रहो, तो इससे हमें एक बात हमें समझ में आ सकता है. ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं कि पौलुस के जीवन में जो एक समय विवाहित था परंतु कुछ कारणवश उसकी पत्नी का शायद देहांत हुआ होगा जिसकी वजह से अभी वो स्वयं एक विधवा बन चुका है. Therefore, he says to the widows, he's encouraging widows that now, after you become widow, now don't seek to get married. How can say this? Who can dare to tell this to widow? Who had a pleasure, who had a life with her husband lived. How can he tell them now you live without that husband? Only a person
who can practice this. Now I also had a wife like you had a spouse. I also had a wife, but now see, I am not living, I'm not desiring for now again to be entangled for another wife. So like me, you also now choose to remain a widow. परंतु Only that person can tell this. Only that person can command like this. यस, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, परंतु मैं विधवाओं से मैं ये विषय में कहना चाहता हूँ, किसके पास ऐसा हिम्मत होगा बताने के लिए कि विधवाओं को जाके बोलेगा कि तुम लोग इस तरह की दोबारा शादी नहीं करो करके? ऐसा कौन बोल सकता है? क्योंकि एक विधवा एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपना पार्टनर के साथ, शायद अपना पति के साथ वो सारा जीवन का अनुभव उसने करने के बाद और अचानक उसका पति मर गया तो उसको फिर से विवाह करने का मन हो सकता है, परंतु कौन ऐसा बोलेगा विधवाओं को कि तुम लोग दोबारा शादी ना करो? वो तो वही व्यक्ति बोलेगा जो खुद एक समय में शादीशुदा हुआ और उसका पति मर गया और वो खुद विधवा का अवस्था में है। इसलिए पौलुस को इस विषय में इतना धैर्य हो पाया और वो कह पाया कि हे विधवाओं, तुम लोग मेरे समान रहो, अविवाहित रहो, दोबारा शादी ना करो। But then, so then there is a contention. So there are two words: unmarried and widows. So there are two categories of people. So why? So okay, widows we can understand. What? But he is commanded to even unmarried तो to फिर ऐसा remain just as I am. तो एक वाक्य, ये वाक्य पढ़ने के बाद थोड़ा आपको संदेह हो सकता है, परंतु वहां पर तो क्या लिखा है? अविवाहित और विधवाओं करके लिखा है। विधवाओं का बात समझ सकता है क्योंकि वो लोग का शादी हो गया था इसलिए दोबारा शादी ना करो बोला है, परंतु अविवाहितों को क्यों बोल रहा है ऐसा? If so, in this case, how can we justify that Paul had a wife? तो इस विषय में हम लोग बता सकते हैं कि पौलुस के पास शादीशुदा हो गया था करके, पत्नी था करके? In verse 11, 11वां वाक्य पढ़ते समय में, even if she departs, is talking to the husband who is a believer. If his wife departs from him because of the faith, परंतु आगे चलकर यदि तुम्हारा पति तुमको छोड़ दे, यानी कि तुम एक विश्वासी हो और तुम्हारा पत्नी क्या है, अविश्वासी होने की वजह से तुम्हारा विश्वास के कारण तुम्हारा पति ने तुमको छोड़ दिया। so sorry, I am not properly saying this. But if she departs, let her remain unmarried or be reconciled to her husband. And means if a person, the sister is a believer, husband is an unbeliever. तो उदाहरण यहाँ पर 11 वाक्य में उदाहरण लेते समय में, यदि वो अलग होना चाहते हैं कि एक दूसरे को विवाह किया हो, अगर वो पति sorry, actually without reading verse 12 to understand verse 10 would be difficult. Let us read verse 12 first. पहले आप लोग वाक्य 12 पढ़ लेंगे समझने के लिए। दूसरे से If any brother has a wife that believed not, and she pleased to dwell with him, let him not put her away. पढ़ना। यदि किसी भाई को पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो यह उसे न छोड़े। If a believer husband has an unbeliever wife, अगर विश्वासी पति को अविश्वासी पत्नी है, but she still loves her husband and doesn't want to leave him because even after he is changed his faith and become a believer. और ये पत्नी ऐसा है कि देखता है कि उसका पति ने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया, यानी कि धर्म बदल लिया हो, यानी कि अपना जो विश्वास वो पहला अन्य देवों पर करता था अभी यीशु मसीह पे विश्वास कर रहा है बोलकर, ये पत्नी तो भी विश्वासी पति से अगर प्रेम कर रहा है तो if she is not stop falling after other gods and she is continuing doing that, but still she wants to be with her believing husband, let him not put her away. और ये पति कोई भी काम में रुकावट नहीं ला रहा है, उनका आराधना के विषय में, सेवा के विषय में कोई भी रुकावट नहीं ला रहा है, और यदि दोनों विवाह के विषय में बने रहने में प्रसन्न है तो उन लोग दोनों को वो एक दूसरे को ना छोड़े। Same way with the opposite now. Verse next is, if any brother, verse 13, and the woman which has her husband that believeth not, if a woman is a believer, husband is not believing, but yet that husband is not divorcing her because of the change of faith. He is continuing to live with her and letting her believe whatever God she wants to believe. Then let her not divorce him. Let her not leave him.
13 वाक्य में जब पढ़ते समय में जब उल्टा होता है, किसी स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो और पति को मालूम पड़ गया कि ये पति विश्वासी है, फिर भी वो पति उससे तलाक नहीं करता और पति के जीवन में कोई भी रुकावट नहीं लाता, तो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर ले बोलकर अगर आजादी दे रहा है, तलाक नहीं कर रहा है, तो इस तरह और दोनों आनंदित है, तो फिर ऐसा पति को वो ना छोड़े। But if the unbelieving person, the partner, either man or woman, if they depart, verse 16, परंतु वाक्य sorry, verse 17, I think. 14 में है ना, Sorry, आगे ऊपर लिया ना, sorry, नहीं, verse 15. हाँ, पर वाक्य 15 में, परंतु यदि अविश्वासी जो पुरुष है, अविश्वासी व्यक्ति अगर वो विश्वास करने वाला व्यक्ति को अगर वो तो छोड़ देता, तलाक कर देता है, तो A brother or a sister is not under bondage in such cases. तो ऐसे विषय में वो भाई या जो बहन है, उसका पार्टनर अविश्वासी और उसको छोड़ना चाहता है, वो इस विषय में कोई बंधन में नहीं है। So let him, he's released now. He can let her go or she can let him go. तो ऐसा अवस्था है, यदि अविश्वासी को उसको विश्वासी पार्टनर के साथ रहने का अवस्था नहीं है और उसको अलग रहना चाहता है, तो इसमें पूरा स्वतंत्रता है, उसको छोड़ दो, उसको अलग हो, उसको जाने दो। This is where Paul says कि now because of his faith in the Lord, probably his wife left him, his wife departed from him. This is another understanding regarding Paul. तो इसलिए इस विषय में ये वाक्य को पढ़कर हमें ऐसा लग सकता है कि शायद पौलुस का जीवन में भी ऐसा हुआ होगा कि पौलुस के विश्वास की वजह से उसका पत्नी ने उसको छोड़ दिया, जिसकी वजह से ऐसा शायद लग सकता है कि पौलुस अभी विवाह का अवस्था में नहीं है, क्योंकि उसका पत्नी उसको छोड़ के चला गया। And therefore, let him remain unmarried. और फिर वो ऐसा अगर अवस्था रहा और उसका अविश्वासी पार्टनर उसको छोड़ दिया, तो वो विश्वासी व्यक्ति क्या करना चाहिए? वो फिर अविवाहित रहना चाहिए। Because God is taking away now somebody from her away. If she is going away, if God did not stop, you also don't stop. You are not in the bondage. You just release him. Don't try to force him. क्योंकि परमेश्वर ने उसको रोका नहीं, जब ये विवाह को जब रखते अलग होते समय में प्रभु ने उसको रोका नहीं कि तू अलग मत हो करके रोका नहीं, इसलिए प्रभु ने जो बात को रोका नहीं है, तुम भी उसको ना रोके, यदि वो जाना चाहता है उसको जाने दे। In this way, if your wife leaves you for the Lord's sake, remember the double underline, for the Lord's sake she left you now, then you remain unmarried. इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ, यदि प्रभु के खातिर, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, यदि प्रभु के खातिर अगर तुम्हारा पार्टनर ने तुमको अगर छोड़ दिया है, तुम्हारे विश्वास को देखते हुए वो पार्टनर कहता है कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए बोलकर, इस कारण बोलकर, विश्वास के कारण वो अगर अलग होना चाहता है, तो हम अलग होए और वो व्यक्ति दोबारा शादी ना करे। That will be good if he doesn't marry. That is, and I wish you were remain as I am. Means that way. That's how he could request the unmarried ones not to remarry again. इस विषय में पौलुस वहां पर वो कहता है कि इस विषय में तुम लोग अच्छा कर रहे हो कि तुम लोग, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे समान रहो, कि तुम लोग दोबारा विवाह ना करें। And so from this we can understand very clearly that many people have ended up marrying a woman, a sister, saying that I will try to win her in the Lord. Many women marry a husband, I'll win him in the Lord. When we do not have any guarantee, we cannot marry an unbeliever person. This is every young boy listen very carefully. इसलिए मैं सारा जवानों को ये बात मैं अच्छी रीति से समझाना चाहता हूँ, ऐसा गलती नहीं करना कि मैं शादी करने के बाद मैं वो मेरा पार्टनर को मैं उसको विश्वास में लाऊंगा करके मैं उसको जीतूंगा और मैं उसको मसीही बनाऊंगा। ऐसा बड़ा गलतफहमी कभी नहीं करना, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है उस बात में कि वो शादी के बाद वो विश्वासी बन जाएगा क्या नहीं, वो हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए ऐसा कभी ये बात सोचकर शादी नहीं करना कि शादी के बाद मैं उसको विश्वासी बनाऊंगा। Why? Because after you're married, then you cannot depart from him or her. You will have to live under his bondage. क्योंकि अगर एक बार तुमने विवाह कर दिया है तो तुझे उसके साथ रहना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तू उस बंधन को तोड़ नहीं सकता। It is a very, very troubled life when a person is a believer and another is an unbeliever. I'm telling you, it is worse. It's like hell.
और इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ वो ऐसा अवस्था कि पति विवाहित है, विश्वासी है और पत्नी अविश्वासी है, या फिर पत्नी विश्वासी है और पत्नी अविश्वासी है, इस तरह दोनों में से कोई एक ही विश्वासी है और दूसरा विश्वासी नहीं है, तो ऐसा पारिवारिक जीवन एक नरक तुल्य जीवन रहेगा। You will be only released when that person, you cannot seek to be loosed. That person only, can give you divorce. Then और only you will be freed. और तुम लोग कभी स्वतंत्र होगे जब तुम्हारा पार्टनर निर्णय करेगा कि तुझे छोड़कर जाना है करके। जब तक वो नहीं बोलता या बोलती तब तक तुम उस विवाह के बंधन में फंसे रहोगे। तुम नहीं बोल सकते कि मुझे विवाह तलाक चाहिए करके, बल्कि वो बोलना पड़ेगा क्योंकि वो अविश्वासी है, उसको पड़ेगा मुझे तलाक चाहिए। जब तक वो नहीं बोलता या बोलती तब तक तुझे इस विवाह में ईमानदारी से ही रहना पड़ेगा। Only one concession God given is adultery. If your husband is committed adultery, he is an unbeliever, then you have, according to the law, you have one chance or one opportunity to seek for a divorce. परंतु प्रभु ने एक विषय का कारण देकर कहा है, यदि तुम्हारा पार्टनर ने किसी अविश्वासी के साथ अगर उसने व्यभिचार कर दिया है, तो वो एक कारण लेकर तुम तलाक का विषय के लिए तुम बोल सकते हो तलाक चाहिए करके। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है तलाक लेने का। And as long as that person is not committed any adultery and he wants to be with you, and but you will have to suffer his flesh life all your life. Just imagine marrying an unbeliever is such a painful affair. और जरा सोचो, तुमने एक ऐसा व्यक्ति से शादी किया, उसने व्यभिचार किया रहेगा, परंतु वो तुमको छोड़ना तुमको नहीं चाहता है, फिर तुम उसके साथ तुम लोग बने रहेगा। जरा सोचो, फिर ऐसा व्यक्ति के साथ तुम्हारा पूरा विवाहित जिंदगी में तुम्हें वैसे ही तुमको रहना पड़ेगा। The second option would be in a worst case where, an extreme case, where it would be proved that there is no fault from your side and the man is, physically abusing you, hitting you, torturing you. Then, out of defense and protection, you may have to run out, takes police protection and all those things. In that case, you can seek to be apart from your husband. That is one opportunity or a discount or a concession available in the Bible where a woman can seek to depart from her husband. और दूसरा एक ऐसा सुविधा, एक कारण जहाँ पर हम देखते समय में पत्नी एकदम नादान और बिचारी है, परंतु पति वो क्या करता है, हमेशा पत्नी के ऊपर हाथ उठाता है, उसको मारता है, पीटता है, यहाँ तक कि एक ऐसा अवस्था हो गया कि वो मर जाने का दशा में हो गया है, जान जाने का अवस्था है। तो ऐसे अवस्थे में वो पत्नी के पास पूरा अधिकार है उस पति से जान छुड़ाकर बचकर अलग हो जाने के लिए। But after she has loosed from such a husband, Bible doesn't permit her to again remarry. That is why that is very clear. If a woman, see verse 11, it is in this understanding we need to understand verse 11. और इस अर्थ में हमें वाक्य 11 को हमें समझना है। यदि इन रीति से यदि अगर वो पति से अलग हो जाता है, दूर हो जाता है, तो फिर वो अलग हुआ पत्नी दोबारा किसी और से शादी नहीं कर सकती, उसको कुंवारी ही रहनी पड़ेगी, मतलब विधवा ही रहना पड़ेगा। यानी remain unmarried. It is in this understanding Paul is trying to explain what is mentioned in verse 8, what it means and not to marry. Why he is advising to the unmarried and widows. He's talking about those women who has departed from their husband because either due to torture or because husband has passed away. You remain still single. Better that you remain, do not get married again. इस विषय में पौलुस वाक्य 8 में वहां पर पौलुस कहना चाहता है कि अविवाहित और विधवाओं को कहना चाहता है कि वो लोग इस विषय में वो कहना चाहता है, यदि तुम्हारा पार्टनर ने तुमको बहुत सताया और उपद्रव किया है और तुझे अलग होना चाहता है तो तू उससे अलग रहना, या फिर तेरा पति तुझसे मर चुका है, तो ये कारण के विषय में अगर ऐसा जीवन में तुम्हारा परिस्थिति आ गया है तो दोबारा शादी ना करना। I hope you all are understanding. मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं। Now time is too much going on. We will continue by God willing in the next lecture. और मैं धन्यवाद देता हूँ, इतना समय प्रभु ने दिया। अगले विषय को हम लोग अगले समय में हम लोग लेंगे। We need special prayer and wisdom. You all please pray because it is not easy to assimilate this and explain to you all. Chapter 7 is a most complicated scripture portion of chapter where to
give the juice to you all. It's not an easy thing. और मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब लोग इस विषय में प्रार्थना पूर्वक रहे, प्रार्थना में तुम लोग बने रहे, क्योंकि ये अध्याय के विषय में वर्णन करके उस अध्याय का आनंद बांटना कोई आसान बात नहीं है, बहुत कठिन का बात है, और प्रभु का बहुत बड़ा दया और सामर्थ्य चाहिए, इसलिए तुम निरंतर प्रार्थना में रहना। In America, it is said almost 80% of the church is living in sin. Is all primarily because they have not kept the words in chapter 7. और वह अमेरिका में ऐसा दशा हो चुका है कि लगभग 80% का कलीसिया के लोगों के 80% लोगों का अवस्था ऐसा है कि वो लोग पाप की दशा में है, क्योंकि वो लोग ने वाक्य 7 को वो लोग ने संभाले रखा नहीं है। चैप्टर 7 सॉरी 7वां अध्याय को वो लोग ने माना नहीं है, वो वचन को 7वां अध्याय को वो लोग ने पाला नहीं है, जिसकी वजह से बहुत पाप उनके जीवन में लगभग 80% विश्वासी लोगों के जीवन में हुआ है, हो रहा है। One day the Lord will judge us. हे प्रियो, एक दिन प्रभु हमारा न्याय करेगा। Every intent of our heart, every conscience, He will judge. हमारा हर एक विचार, हमने जो भी आग्रह किया और हमारा सब विवेक का विषय, सब बातों का प्रभु न्याय करेगा। One thing only I want to encourage, whether God has called you with that gift or not, whether you will remain married or single, let God be your topmost priority. Let Christ be all and all. Let Christ get all the preeminence in your life. Then everything will come in order. Even your married life also will be in order. इसलिए बस एक ही बात मैं बताना चाहता हूँ कि भले तुम लोग कुंवारे हो या विवाहित हो, एक ही विषय में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि सब बातों में तुम्हें प्रभु को तुम लोग प्रधान और मुख्य स्थान तुम्हारा जीवन में दे, तो ही तुम्हारा जीवन एक सुखद जीवन होगा। यदि तुमने प्रभु को अपना जीवन में पहलौठा स्थान अगर दिया है, तो ही तुम्हारा विवाह भी, जो विवाह तुम्हारा हो चुका है, वो एकदम आनंद पूर्वक, शांति पूर्वक जाएगा। You will be able to walk. If your calling is that you remain unmarried, the gift will operate in you, and you will be able to remain walk without your flesh burning for it, because the Spirit of God will be filling that vacuum with the surplus love, straight from heaven in you, in your heart. Your heart will be filled with only cares for the Lord, cares for the things of the Lord. You will have no other things disturbing your mind. Those things will remain very. It will not matter to you. It will be undeterred. No, it will. You will not feel those things to care about. In verse 17 we'll read and we'll end up there. इसलिए वास्तव में अगर प्रभु का बुलावा तुम में है और अविवाह शादी ना करने का विषय में मनोभावना में रहते समय में अगर सचमुच प्रभु की ओर से तुम्हें बुलावा है कि तुम अविवाहित रहो, तो ऐसा अवस्था में प्रभु को, ऐसा व्यक्ति विश्वासियों को प्रभु का खास वरदान उसको रहेगा, और उसके जीवन में इस तरह का अभिलाषा का वो बातें वो पूरा होने का विषय में उसको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का नियंत्रण में रहेगा, और उस वरदान की वजह से, आत्मा का नियंत्रण में रहने की वजह से वो गिरेगा नहीं, बल्कि मसीह में और आगे बढ़ेगा। Praise the verse 17 and we'll end up. I think this is the longest Bible study we ever taken. और बाकी 17 में हम देखते हैं ये सब बातों को, और मेरे ख्याल से अब तक का सबसे बड़ा बाइबल स्टडी हमने लिया है। पढ़ना है क्या 17? It's okay if they want to read. Okay, then we can close, sir. ठीक है ब्रदर्स, कोई प्रार्थना कर लो फिर।